it was possible. I also would like to thank all the branches, Pune branch, Jalgaon branch, and Navi Mumbai branch for their joint participation, and also wish everyone a very happy learning. Yes, over to you, Pradnya. Thank you, sir. Now I request Ms. Pooja Thaure, Vice Chairman of Amannagar Branch of Picasa, to take the privilege to introduce our session speaker, CA Parishit Bhadade, sir. Thank you, Pradnya. Good morning, everyone. It gives me an immense pleasure to introduce you all to our today's speaker, CA Parikshit Bhadade, sir. Sir is a qualified chartered accountant with CA Foundation All India Rank 11, graduated BCom with gold medal, post-graduated MCom, where he had second rank at North Maharashtra University. He has completed certain certified courses such as DISA, DIRM, FAFD, Concurrent Audit Certificate courses, and has also done financial market certification course. Presently, he is working as a managing partner in Bhadare Lahoti and Company. It is a CA firm having head office at Jalgaon and branches at Hyderabad, Aurangabad, and Nashik. Talking about his professional work experience, he is a partner, as previously mentioned, in Bhadade Lahoti and Company since 2004, having work experience of more than 18 years. His area of specialization is bank audit, private sector, and trust. Talking about Sir's contribution towards CA fraternity, he was the chairman of Jalgaon branch of WIRC ICAI for the year 2013-14. During his tenure, Jalgaon branch was awarded for the first time at national level and also awarded as the best branch at WIRC by ICAI. He was also the chairman of Jalgaon branch of Bicasa for the year 2012 and 13. Sir was also the chairman of various subcommittees formed by Jalgaon branch. Recently started YouTube channel CA Parikshit Bhadade for informative videos for CA members and students. Also started new initiatives for mentorship to CA students and providing financial as well as knowledge sharing learning to students through Bhadade Charitable Foundation. We are glad to have you, sir. Thank you. Without further delay, I request CA Parishit Bhadade, sir, to take over the charge of the session. Thank you, Pooja. And Pradnya, first of all, I thanks Sanit Mutha, sir, for giving me an opportunity to speak on RERA subject. I also thank the Vikasa committees of Nagar branch, Jalgaon branch, Pune branch, and Navi Mumbai for jointly hosting this program. Just a minute. Friends, RERA. RERA is comparatively new. RERA was introduced first of all 2013. RERA bill was introduced in 2013, but it could not make as an act. Later on in 2016, RERA bill was again introduced in the parliament, and in the 2016 RERA bill is passed, so it becomes the RERA Act 2016. So first of all, RERA is a act which is central level, but being the land and building is a part of the state act. So each state has to accept the RERA model governed by the central government. So RERA is on central based theme, but it is on the basis of state-wise act. So in this video or in this seminar, we are going to cover the MahaRERA Act, means the RERA which is accepted by Maharashtra state. So everyone was doubting what is RERA. कि रेरा क्या है, रेरा कैसा होना चाहिए, रेरा में कौन से प्रोजेक्ट कवर होते हैं. तो इस सेमिनार में हम लेने वाले रेरा का बेसिक, रेरा किसको एप्लीकेबल है, रेरा का बेनिफिट क्या हो सकता है, रेरा लाया क्यों गया. सबसे पहले रेरा जो है वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है. रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस मतलब जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर जो लैंड है वो प्लॉट पे कन्वर्ट होती है. यहाँ पे काफी बड़ा अनरेगुलेटेड सेक्टर था. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वन साइड बिल्डर्स ऑन वेरी हाई साइड, so and allotee was on very low side. So इसमें ये होता था कि काफी बार इस तरह से होता था कि builders exploit करते थे allottees. There are various issues in the real estate segment due to which the government thought of to introduce a central act where this transaction can be regulated.
till 2016 there was no specific act to govern these issues. So first of all, before going to the actual RERA or basic of the RERA, we should understand what are the problems in the real estate transactions. अगर आपको रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में क्या क्या इश्यूज थे, अगर वो समझ में अगर अच्छे से आते हैं आपको, तो आपको समझेगा कि रेरा किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है या फिर रेरा का बेनिफिट किस तरह से हो सकता है. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. जैसे मैंने बताया आपको रियल एस्टेट में जो इश्यूज था, फर्स्ट इशू हाईली अनरेगुलेटेड सेक्टर. इवन दो बिफोर 2016 देयर आर वेरियस एक्ट, महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, देन सोसाइटीज एक्ट, वेरियस एक्ट्स गवर्न करते थे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को, बट देयर इज नो एक्ट टू गवर्न द वेरियस इश्यूज. फॉर एग्जांपल, अलॉटी के जो राइट्स थे, अलॉटी को टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए फ्लैट्स का, वो नहीं होता था. ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी. बहुत सी बार इस तरह से होता था कि बिल्डर जो है अलॉटी को अलॉट करता था कि भाई आपको हम 2 साल में बिल्डिंग बना के देंगे, बट द प्रोजेक्ट इज नेवर स्टार्टेड, और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद काफी साल, 3 साल 4 साल डिलीवरी नहीं मिलती थी. सो देयर वाज अ डिले इन अ पोजीशन. इस टाइम पे देयर वाज ओनली सिविल सूट इज अवेलेबल. मतलब अगर अलॉटी को जाना है तो सिविल कोर्ट में ही जा सकता था अगेंस्ट द बिल्डर. इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसेस. सो देयर वाज नो शॉर्टकट्स फॉर द अलॉटी टू टेक हिज पोजीशन एट अ टाइमली लेवल. सो रेरा इस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है कि ये सब जो इश्यूज है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता था. कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब जो बिल्डिंग बनती है उसके बाद एक म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होती है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज आपको कहता है कि बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते थे. बहुत सी बार बिल्डर ये बताता कि यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ स्विमिंग पूल देंगे, यहाँ पे हम आपको जिम देंगे, बट व्हेन एक्चुअली द पोजीशन इज हैंडेड ओवर टू द अलॉटी, इस तरह से एग्रीमेंट्स एमिनिटीज नहीं मिलती थी. तो ये जो आपको प्राइस दिया गया था, यहाँ पे बेसिकली आपको देखना है कि बिल्डर और अलॉटी, ये दोनों में जो इश्यूज थे कि बिल्डर ने अगर कुछ कमिट किया है, अगर अलॉटी को वो नहीं देता है टाइम पे, तो उसको क्या गवर्न होगा. तो ये बहुत सारी जो इश्यूज थे कि ये पहले कवर नहीं होते थे, बट 2016 के बाद रेरा एक्ट में ये काफी कुछ कवर हुआ है. और काफी हद तक मैं कहूंगा कि रेरा एक्ट की वजह से रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन ये रेगुलेट हो चुके हैं. बट जिस तरह से मैंने कहा आपको कि 2016 में रेरा एक्ट आया, अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं, बट द पेस ऑफ रेरा अथॉरिटी इज वेरी ऑन हाई साइड. जिस तरह से अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करें, जैसे इनकम टैक्स पता है अपने को, देन आरओसी कंपनीज एक्ट पता है, ये काफी पुराने एक्ट्स है. सेबी, ये काफी पुराने एक्ट्स है, तो इसमें काफी रेगुलेशन आ चुके हैं. बट जिस तरह से रेरा है ये 2016 में आया है, अभी 7 ही साल हुए हैं, तो इसमें काफी कुछ गवर्नेंस आना बाकी है. सो विद उसमें कोविड पीरियड चला गया 2 से 3 साल का, बट 2022 ऑनवर्ड्स द रेरा अथॉरिटी इज वेरी एग्रेसिव. और जितने भी रेरा अथॉरिटी ने अभी 2 साल में जितने ऑर्डर पास करी है, ये इसका अगर इम्पैक्ट में सोचूं तो अभी आने वाला पीरियड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए काफी टफ होने वाला है. सो ये जो अपना सेमिनार है आज का, कि आपके अपने को बेसिक समझ में आए, और अगर आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में अगर प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हो तो ये इशू समझना काफी जरूरी है. देन जैसे मैंने नीचे बताया, डाइवर्जन ऑफ द फंड. जनरली बिल्डर क्या करता था कि एक प्रोजेक्ट बताता था, उसमें कुछ अमाउंट अलॉटी से ले लेता था. सपोज 50 लाख का फ्लैट अगर अलॉटी को दिया हुआ है और 10 लाख रुपए उसने एडवांस ले लिया, इस तरह से वो 10 फ्लैट के अगर 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए, तो ये 1 करोड़ रुपए लेने के बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो अमाउंट डाइवर्ट करके नए प्लॉट में लेते. तो ही वाज टू मेक मोर अमाउंट. तो इस तरह से डाइवर्जन ऑफ मनी होने की वजह से वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट टाइम पे नहीं होता. देन देयर वाज अ मेजर लकूना इन द ओल्ड सिस्टम वाज सेलेबल एरिया. जब आप अलॉटी बिल्डर के पास जाता था तो बोलता था कि 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, बट अगर आप जब ऑन द साइड जाएंगे तो वो फ्लैट निकलता था 600-700 स्क्वायर फीट, because there is no common parameter between the what is a carpet area, what is built up area, what is super built up area. ये जो 3 एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कार्पेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, ये तीनों जो कंसेप्ट ये पुराने सिस्टम में थी, बट रेरा आने के बाद उन्होंने कार्पेट एरिया डिफाइन कर दिया है. तो अभी जो भी ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट में होने वाले वो सब कुछ होने वाले कार्पेट एरिया पे. देन बहुत सी बार ओपन स्पेसेस जो थी वो सेल आउट हो जाती थी, पार्किंग सेल आउट होती थी, बट वो पुराने एक्ट में अलाउड थी, अभी अलाउड नहीं है. तो ओवरऑल ये सब जो इश्यूज थे, इसके वजह से रियल एस्टेट में रिफॉर्म लाना जरूरी था, और द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली ट्रैकिंग दिस प्रॉब्लम्स एंड दे हैव कम अप विद सॉल्यूशन ऑफ रेरा.
नाउ व्हाट आर द रेरा एलिमेंट्स? आप सब सोच रहे होंगे कि रेरा एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं रेरा की अगर क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो मेजर 4 एलिमेंट्स अपने पास। वन इज प्रमोटर। मैं इस वेबिनार में आगे जिस तरह से जाऊंगा, ये बेसिक कंसेप्ट जो है मैं सब आपको बताने वाला हूँ। हु इज प्रमोटर, हु इज अलॉटी, ये दो कंसेप्ट अपन ने डिटेल में इस पर लिया है कि प्रमोटर्स के क्या राइट्स है, बिल्डर्स के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, अलॉटी की क्या राइट्स है। देन कमिंग टू द रेरा अथॉरिटी। तो ओवरऑल रेरा में अगर बात करूं तो अपन 4 एलिमेंट आते हैं अपने। फर्स्ट वन इज प्रमोटर, सेकंड वन इज अलॉटी, देन रेरा अथॉरिटी एंड रियल एस्टेट एजेंट। मीनिंग दैट जब रेरा एक्ट आया है तो इन्होंने सभी एलिमेंट्स को रेरा एक्ट में कवर कर लिया कि ये जो चारों लोग हैं कि रेरा अथॉरिटी मतलब जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कुछ भी इश्यूज है तो रेरा अथॉरिटी विल गवर्न ऑल ऑफ दी प्रमोटर, अलॉटी एंड रियल एस्टेट एजेंट। तो रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए, किसने करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें क्या क्या एग्रीमेंट्स होने चाहिए, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किस तरह से होनी चाहिए, अलॉटी को क्या राइट्स है, अलॉटी ने क्या क्या उसके राइट्स है कि वो प्रमोटर से क्लेम कर सकता है। अगर प्रमोटर ने उसको टाइम पे नहीं करके दिया है तो वो रेरा अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऑल दीज आर रेरा एलिमेंट एंड एवरीथिंग इज कवर इन द रेरा एक्ट। नाउ वी विल सम टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल फिगर कि रेरा इंप्लीमेंटेशन किस तरह से है। तो जैसे मैंने बताया कि रेरा इज अ सेंट्रल थीम, जैसे जीएसटी आया था उस तरह से रेरा थीम सेंट्रल लेवल पे है। तो 19 जून की अगर पोजीशन देखें अपन तो 30 जगह पे वेब पोर्टल एप्लीकेबल है। तो हर स्टेट का अपना वेब पोर्टल है। तो 30 वेबसाइट्स आर आप इन पोजीशन नाउ। ओवरऑल 32 रेरा अथॉरिटीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। जिस तरह से 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, टोटल 36 है। तो 36 इसमें से 32 जगह पे रेरा अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है। उसमें से 30 रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट वेब पोर्टल एक्टिव है। 28 रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल आ चुके हैं और 24 एजुकेटिंग ऑफिसर आए हैं। ओवरऑल स्टेटस 19 जून इज पैन इंडिया बेस पे अगर देखेंगे आप तो 1,08,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रियल एस्टेट एजेंट 77,000 एंड कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ 1,11,098। अगर आप ये ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, इसमें महाराष्ट्र की अगर सिचुएशन देखेंगे तो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है 41,566। तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 40%। तो 40% प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है कंपेयरिंग टू द ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस। 43,000 इज रियल एस्टेट एजेंट्स एंड 14,000 कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ। तो जो रेरा का जो मेजर थ्रेशोल्ड है कि कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, तो आप देखेंगे टोटल ऑल इंडिया बेसिस पे 1,11,000 कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं। मीनिंग दैट जहाँ पे भी अलॉटीज को कुछ इश्यूज है, अलॉटी ने कंप्लेंट करी है रेरा अथॉरिटी के पास या रेरा ट्रिब्यूनल के पास और वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। सो द रेरा इज मेनली फोकसिंग ऑन registering of the projects, providing information to the allotee, and if allotee is having any issues, the complaint can be raised to the RERA authority, and RERA is trying a conciliation process first of all and disposing of the complaints, and overall complaint status is 1,11,000. See, within a span of 6 years, out of which 2 years was the COVID period, उसमें भी 1,11,000 कंप्लेंट हो चुकी है। So overall this status is very good. Now we will understand how the RERA will impact on the various issues in the RERA. First of all, project registration is compulsory. जैसे अभी जो भी मैं बात करने वाला हूँ 2016 के पहले क्या था और 2016 के बाद क्या है। तो 2016 के पहले कोई भी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं था। मींस एनी बिल्डर कैन स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट। वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी से परमिशन लेके प्रोजेक्ट शुरू कर सकता था, बट उसको कहीं भी सेंट्रलाइज लेवल पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं था। रेरा आने के बाद प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ है, बट अगेन देयर इज अ क्लॉज दैट इन सम कंडीशन प्रोजेक्ट हैज टू बी रजिस्टर्ड। बाकी प्रोजेक्ट रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन क्लॉज में बाद में आ रहा हूँ। तो बट रेरा के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंपलसरी हो गया, जिसमें 500 स्क्वायर मीटर की कंडीशन है। प्लॉट अगर 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी। देन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो जो भी प्रोजेक्ट्स के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन सबमिट करना कंपलसरी है। सो
the theme line of the RERA is the availability of the document to the allotee. जब भी allotee कोई भी फ्लैट परचेस करने जाता है या फिर कोई भी अपार्टमेंट परचेस करने जाता है, तो उसको वेल एडिक्वेट इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मिलना चाहिए, उससे कंपेयर करते आना चाहिए कि बाकी बिल्डर्स किस तरह से दे रहे हैं. जस्ट अ मिनट. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. So he should be able to understand which projects are there, project की क्या-क्या documents available है. He should be able to compare all the documents and he should take a well educated decision. Now coming to the carpet area, जो basic problem था रेरा के before, कि अगर एक बिल्डर बोलता है कि मेरा फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है, सेकंड बिल्डर बोलता है मेरा फ्लैट 1200 स्क्वायर फीट का है, तो अलॉटी जो था वो क्या सोचेगा कि 50 लाख का प्राइस है, अगर मुझे 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल, और दूसरा बिल्डर बोलता है 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है सेम एरिया में, तो अलॉट यही डिसीजन लेंगे कि मैं 1200 स्क्वायर फीट अपनी एरिया ज्यादा मिल रहा है. बट बिफोर 2016 द कंपटीशन ऑफ द बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया वाज नॉट डिफाइंड एट ऑल. तो अगर जब एक्चुअल साइट पे जाएंगे, जो 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट था वो शायद 800 स्क्वायर फीट का मिलेगा आपको यूजेबल एरिया, और 1000 का था वो 850 का मिलेगा. So there was a very ambiguity between the area available used to the customer. But ये सब जो issues थे, ये सब issues रेरा एक्ट के बाद बंद हो गए. रेरा had come up with the definition of the carpet area, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट साइन करके देना है, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना है, वो कारपेट एरिया पे करना. नाउ द बिल्डर ए एंड बिल्डर बी दोनों का कारपेट एरिया द अलॉटी कैन कंपेयर, एंड कारपेट एरिया हैज अ स्पेसिफाइड मीनिंग एज पर सेक्शन 2K of the RERA Act. Now one more condition, जैसा मैंने पहले बताया था कि साइफनिंग ऑफ द फंड, एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का लिए पैसा लेता था अलॉटी से, वहां पे यूज नहीं करता था और वो सेकंड प्रोजेक्ट पे यूज करता था. सो एट द सेम टाइम ही स्टार्टिंग 2 और मोर प्रोजेक्ट्स. तो ये प्रॉब्लम भी रेरा एक्ट में सॉल्व हो गया. रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट. नाउ रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट की जो कंसेप्ट है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला है उस पे आपको 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट पे खर्चा करना है. नाउ दिस इशू इज सॉल्व विद द रेरा एक्ट. देन रेरा अथॉरिटी ने सोचा कि ये जो प्रोजेक्ट्स है सब कुछ, इसमें अगर अपने को डेवलपर, प्रमोटर, बिल्डर इनको अगर गवर्न करना है तो यहाँ पे प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट लाना जरूरी है. तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोफेशनल स्पेसिफाइड करे गए हैं. वन इज इंजीनियर, सेकंड वन इज आर्किटेक्ट, थर्ड वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो तीनों के रोल डिफाइन कर गए और तीनों को प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया है. तीनों से टाइम टू टाइम बिल्डर्स को सर्टिफिकेट्स लेना है और वो सर्टिफिकेट रेरा अथॉरिटी को सबमिट करना है. तो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोफेशनल, जो अपने प्रोजेक्ट से उसकी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होंगी. मतलब बिल्डर अगर बोलता है कि मेरा 80% काम हो चुका है, तो बिल्डर बोलता है कि 80% काम हो चुका है, इसको सर्टिफाई कौन करे. तो दिस प्रोफेशनल ड्यूटीज कास्टेड ऑन अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट. देन मेजर इम्पैक्ट वाज कि बिल्डर अगर लो क्वालिटी के अगर घर बनाता है और इसमें अगर बाद में अलॉटी को इशू होता है, फॉर एग्जांपल बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाई, वो अलॉटी को दे दी, और सपोज 2 साल के बाद उस बिल्डिंग में अगर कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल सीपेज ऑफ वाटर है, तो ये सॉल्व कौन करके देंगे. बिल्डर बोलता था कि जब मैंने हैंड ओवर किया था प्रॉपर था, अभी आई एम नॉट लायबल फॉर दिस इश्यूज. बट रेरा एक्ट में ये लाया गया है कि कोई भी बिल्डिंग हैंड ओवर करने के बाद उसके 5 साल तक उसमें अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आते हैं तो वो बिल्डर को एट हिज ओन कॉस्ट करके देना है. नाउ यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है अलॉटी को कि जब भी बिल्डिंग हैंड ओवर होती है उसके 5 साल तक अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है बिल्डर को कि भाई ये ऐसे इश्यूज है, आप सॉल्व करके दो. अगर बिल्डर सॉल्व नहीं करके देता, देन ही कैन अप्रोच टू द रेरा अथॉरिटी. नाउ बिफोर रेरा एक्ट there was no governing specific authority. Now after रेरा authority has come. जैसे मैंने बताया कि स्टेट वाइज अपने आप में महारेरा अथॉरिटी है. देन रेरा अथॉरिटी के ऊपर ट्रिब्यूनल लाया है.
नाउ दीज आर ऑन द सेम लाइन ऑफ द इनकम टैक्स, जैसे अपने यहाँ पे कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर अपील्स होते हैं, देन ट्रिब्यूनल होता है। सिमिलरली रेरा में 2 अथॉरिटी, रेरा अथॉरिटी है। अगर रेरा अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर्स पास करी है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करना है तो देयर इज अ ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। द 9th पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जिस तरह से रेरा अथॉरिटी आ रही है, इट इज एट अ वेरी रैपिड स्पीड कवरिंग द डॉक्यूमेंट्स। और जो पहले लकूना था कि बिल्डर्स डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग लिख के दे सकता था, जब वो आपको अलॉटी को प्रॉमिस करता था कि मैं ये फ्लैट देने वाला हूँ, तब कुछ अलग प्रॉमिस करता था, बट जब एक्चुअल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन होते थे तब वो चीजें नहीं रहती थी। बट अभी ये सब चीजें रेरा अथॉरिटी ने लाई है कि ये सब स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट होंगे। मतलब कोई भी बिल्डर लो, आपको सेल एग्रीमेंट सेम मिलेंगे, अलॉटमेंट लेटर सेम मिलेंगे, so that you can compare both the allotment letters or both the agreements, and everything is available on a web portal. At the last of this video, अगर टाइम परमिट करता है मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो। देन प्रोजेक्ट अगर सपोज 5 साल का है, अलॉटी ने आज कोई फ्लैट बुक किया है और प्रोजेक्ट 5 साल का है, और 5 साल के बाद डिलीवरी अगर प्रोजेक्ट की होने वाली है, तो 5 साल में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने पैसे हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, कितनी अमाउंट खर्चा हो रही है, ये किस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पे महारेरा ने लाया है कि आपको प्रोजेक्ट्स रेगुलर लेवल पे इंटरवल पे अपडेट करने हैं। तो कुछ अपडेट आपको एज एंड व्हेन करने हैं, कुछ क्वार्टरली करने हैं, कुछ ईयरली करने हैं। तो ये अपडेट्स भी आपको वेब पोर्टल पे अपलोड करने हैं, और वो वेब पोर्टल पे अपलोड करने के बाद अलॉटी कैन टेक दिस ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। देन रिफंड इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन। रेरा अथॉरिटी ने एक कॉम्पैक्ट मैकेनिज्म लाया हुआ है कि जहां पे आपको ये दिया गया है कि अगर सपोज बिल्डर ने बोला है कि 3 साल के बाद मैं पर्टिकुलर फ्लैट स्कीम आपको हैंड ओवर करूंगा, 3 साल के बाद अगर वो फ्लैट हैंड ओवर नहीं करता है, देन व्हाट? तो इन दैट केस अलॉटी हैज अ राइट दैट ही कैन क्लेम रिफंड along with interest also। और अगर उसको कुछ कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है, तो ही कैन ऑल्सो क्लेम द कॉम्पेंसेशन। So all these are rights given to the allotee in RERA Act. Then RERA is very specified कि प्रमोटर की क्या ड्यूटीज है, अलॉटीज की क्या ड्यूटीज है, अलॉटीज की क्या राइट्स है, रियल एस्टेट एजेंट्स की क्या राइट्स है और ड्यूटीज है। And the main theme line of RERA Act is ensuring timely delivery of the projects. जो भी बिल्डर ने बताया कि 3 साल में मैं डिलीवरी देने वाला हूँ या 5 साल में देने वाला हूँ, उस पीरियड में वो डिलीवरी देता है नहीं देता है। And last one, web portal based. RERA is everything online. All documents are in the public domain. Anyone can check any projects और उस documents पे वो study कर सकता है। Means general public can also study the each and every document of the each registered projects. Now coming to the promoter, जैसे मैंने बताया कि रेरा एलिमेंट में 4 एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर, अलॉटी, रियल एस्टेट एजेंट, एंड इन तीनों को कवर करने वाला है अपना रेरा अथॉरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द प्रमोटर। द प्रमोटर इज डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ। हु इज अ प्रमोटर? दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन रेरा एक्ट। अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और a person who develop land into projects or any development authority or any public body or blah 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 blah. So this is all promoted definition given in the RERA Act. Now meaning that कि promoter कौन हो सकता है? तो any person who construct, मतलब builder developer, a person who develop land into project। अगर आप लैंड ओनर हो और आपने लैंड के प्लॉट्स में कन्वर्जन किए हैं, तो वो भी रेरा एक्ट में कवर है। दैट लैंड ओनर इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रमोटर। अगर लैंड आपने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बिल्डर को दिए, तो दैट डेवलपर इज आल्सो प्रमोटर एज वेल एज दैट लैंड ओनर इज आल्सो प्रमोटर। आज के डेट पे जब बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट समझ में आ रहा है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब लैंड ओनर के पास लैंड है और बिल्डर उसको अप्रोच करता है कि भाई ये लैंड पे मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, और देन वी विल शेयर द फ्लैट्स। लैंड कॉस्ट का जितना प्रोपोर्शन होगा उतने फ्लैट्स आप ले लो, कंस्ट्रक्शन का जितना पोर्शन होगा उतने फ्लैट्स में लेते।
तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लैंड ओनर कहता है कि भाई मैं तो कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं प्रमोटर नहीं हूँ, या फिर मुझे रेरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं। बट सीइंग दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन इज वेरी वाइड। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और वो कॉमन पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अगर आप सेल कर रहे हो, देन यू आर अ प्रमोटर। तो इन दिस सिचुएशन लैंड ओनर इज ऑल्सो प्रमोटर। सो डेफिनेशन काफी वाइड है। और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कोई बिल्डिंग बना के दे रहा है, उसके बदले में कोई 2 फ्लैट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्डिंग बना के दे रहा है, उसके बदले में 2 फ्लैट्स ले रहा है, वो 2 फ्लैट्स वो फ्यूचर में कस्टमर को बेचने वाला है। देन दैट कॉन्ट्रैक्टर इज अ प्रमोटर और नॉट प्रमोटर। So with the definition of this promoter, contractor also fit in this particular definition of promoter. अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रमोटर हो गया तो क्या हुआ, प्रमोटर होना कोई गुनाह तो नहीं है। बट वंस यू कॉल्ड हिम एज अ प्रमोटर, then all responsibilities, duties specified in this act will be applicable to this promoter. तो जो लैंड ओनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने अगर कुछ फ्लैट्स लिए हुए हैं और वो जनरल पब्लिक को सेल करने वाले होंगे, then they are also as a promoter. Now coming to the duties of the promoter. So first one is a registration. तो प्रमोटर को ये सोचना है कि whether he is liable for registration or not liable for registration. तो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन चेक करना है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है तो उसे रजिस्ट्रेशन देना कंपलसरी है। बिफोर टेकिंग रजिस्ट्रेशन ही कैन नॉट डू एनी एडवर्टाइजमेंट और एनीथिंग। रेरा एक्ट में काफी पेनल्टीज हेवीली इंपोज की गई है बिल्डर्स में। मतलब कि जो पेनल्टीज है दैट आर लिंक्ड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज एक बिल्डर बना रहा है एक बिल्डिंग, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सपोज 5 करोड़ रुपीज। देन अगर उसने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो पेनल्टी इज सपोज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मीनिंग दैट अगर आपका पूरा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 5 करोड़ रुपया है, तो आपको पेनल्टी कितनी लगने वाली, 10% मीन्स 50 लाख रुपीज। So these are the heavy penalties imposed in the RERA Act. So builder has to see all these conditions very minutely, and he should not contravene any provisions of that, considering the penalties are heavier. So first of all, promoter को ये चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है नहीं एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट। अगर उसको रेरा एप्लीकेबल है तो एक्ट ये कहता है कि बिफोर डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट यू शुड रजिस्टर। मतलब रजिस्ट्रेशन करने के पहले कोई भी प्रकार का वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। नाउ कमिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, अगर आप देख रहे होंगे पेपर में रेरा एडवर्टाइजमेंट आती है या फिर बिल्डर्स की एडवर्टाइजमेंट आती है, इसमें एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफाइड किया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। तो इसके आगे अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो रेरा की, तो आपको ये चेक करना है कि उसका रेरा नंबर रजिस्टर्ड है क्या नहीं। तो एनी एडवर्टाइजमेंट में कोई भी फॉर्म हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, ब्राउचर्स हो सकता है, बैनर्स हो सकते हैं, फ्लैक्स हो सकते हैं, पेपर एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। एडवर्टाइजमेंट आल्सो डिफाइन अंडर द रेरा एक्ट, और सभी एडवर्टाइजमेंट पे रेरा नंबर कंपलसरी है। सेकंड वन, महारेरा की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस मेंशन करना जरूरी है। अभी यहाँ पे भी रेरा अथॉरिटी का ये इंटेंशन है कि ये जो रेरा नंबर है आप रेरा की वेबसाइट पे जाके टेस्ट कर सकते हो और उस प्रोजेक्ट का डिटेल पूरा ले सकते हो। कमिंग वन मोर सर्कुलर इज कम इन द 2023। उस सर्कुलर के हिसाब से आपको ये चेक करना जरूरी है कि क्यूआर कोड 1 अगस्त 2023 के बाद क्यूआर कोड इज कंपलसरी। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने वाली 1 अगस्त 2023 के बाद उसमें क्यूआर कोड होगा, और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट की डिटेल पूरी मिल सकती है। अगेन द इंटेंशन ऑफ रेरा अथॉरिटी सिंपल दैट कि जो भी अलॉटी है उसको एट ए ग्लांस उस प्रोजेक्ट के बारे में सब इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। देन इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड विद द अलॉटी, जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे म्युनिसिपल प्लान्स, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट्स, टाइटल सर्टिफिकेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ वेब पोर्टल। जब रेरा रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको सब प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है ऑनलाइन, उसी के बाद रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद वो जो सबमिशन हुआ है इंफॉर्मेशन का, उसमें अगर कोई भी चेंज अगर आता है तो वो चेंज आपको सबमिट करना है रेरा अथॉरिटी को, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होगा। तो उस प्रोजेक्ट पे चार्ज अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है,
देन उसका लीगल टाइटल सर्टिफिकेट में जो लीगल सर्च सर्टिफिकेट बोलते हैं अपन, वो कौन सा है वो पढ़ सकते हो आप। प्लान कितनी बार अमेंड हुआ है वो आप चेक कर सकते हो। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दे सकते हो। मॉडल सेल्स एग्रीमेंट की सेल्स एग्रीमेंट किस तरह से होने वाला है वो आप चेक कर सकते हो। अलॉटमेंट लेटर चेक कर सकते हो। एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ वेब पोर्टल। नेक्स्ट वन, सीलिंग ऑफ 10% एडवांस। इसका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि रेरा एक्ट के बाद में सपोज आपने कोई फ्लैट ले रहे हो, सपोज फ्लैट की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, ये आपका एग्रीड अमाउंट है बिटवीन बिल्डर एंड अलॉटी, 1 करोड़ रुपए। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग सेल्स एग्रीमेंट ही कैन टेक मैक्सिमम 10% एज एडवांस। तो 1 करोड़ का अगर फ्लैट है तो एडवांस कितना ले सकता है वो? 10 लाख रुपए। 10 लाख के बाद अगर 11 लाख भी उसको लेना है, मतलब 1 लाख रुपए भी अगर एक्स्ट्रा लेना है, तो ही हैज टू एग्जीक्यूट सेल्स एग्रीमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द रेरा एक्ट। नहीं तो बिल्डर क्या करता था पहले, 1 करोड़ का अगर फ्लैट है तो 20 लाख 30 लाख लेता था और कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करके देता। नाउ 10% का कैप लिमिट आ गया है। 1 करोड़ का अगर फ्लैट है तो 10 लाख रुपए वो एडवांस ले सकता है। 10 लाख के बाद उसको क्या करना है? सेल्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके देना है। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल्स में आपको लिखा जाएगा कि आपको कौन सा फ्लैट बेचा हुआ है, कब डिलीवरी देने वाला है, क्या कॉमन एमिनिटीज होने वाली है, उसमें वो क्या क्या करके देने वाला है प्रोजेक्ट्स में। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एग्रीमेंट टू सेल। तो अलॉटी शुड आस्क बिल्डर कि अगर वो 10% के ऊपर ले रहा है तो एग्जीक्यूट एग्रीमेंट टू सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल अगर वो एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार नहीं होगा तो अगेन ही कैन गो टू द रेरा अथॉरिटी। देन प्रमोटर टू एड्योर द अप्रूव्ड प्लान, जो भी प्लान पासिंग हुआ है। नाउ रेरा इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो बिल्डिंग के प्लान से या फिर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है वो रेरा अथॉरिटी साइन नहीं करती। तो ये जो गवर्निंग अथॉरिटी है ये अर्बन डेवलपमेंट है। अर्बन डेवलपमेंट मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर इन अ म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो जो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने प्लान पास करके दिया है तो बिल्डर इज अंडर ऑब्लिगेशन दैट कि जो अप्रूव्ड प्लान है उसी तरह से उसने कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अगर उस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया है देन इट इज कॉल्ड एज अ वायलेशन ऑफ द रेरा एक्ट। देन मेंटेनिंग रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट आ रहा है, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो ये कैसे होता है? तो इन दिस वेबिनार आई एम कवरिंग डिटेल हाउ व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, हाउ रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट इज ऑपरेटिंग। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में बात कर रहा हूं मैं आपसे। अपडेट प्रोजेक्ट एज पर रेरा सर्कुलर। जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन लिया है आपने, तब जो डॉक्यूमेंट सबमिट करें उसमें अगर कोई भी चेंज है तो आपको सबमिट करना है टाइम टू टाइम। कुछ अपडेट आपको क्वार्टरली करने हैं, कुछ अपडेट आपको ईयरली करने हैं। देन रेरा सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल्स। जिस तरह से आपने को बताया कि रेरा एक्ट में प्रोफेशनल इन्वॉल्व हुए हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स दे हैव टू सर्टिफाई द स्टेज वाइज प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, कितने अमाउंट का काम कंप्लीट हुआ है, उतना बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एवरीथिंग हैज टू बी सर्टिफाइड बाय 3 पर्सन। One is architect, second one is engineer, and third one is chartered accountant. Then RERA audit. Audit is a particular domain of a chartered accountant. तो रेरा ऑडिट आपको करना है पूरे साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन हुए, रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू हुए नहीं हुए। देन जो क्लॉजेस ऑफ द एक्ट, जैसे 10% सीलिंग का लिमिट था वो कहीं पे वायलेशन हुआ है क्या, इतना अमाउंट कलेक्ट होना था वो रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में गया है नहीं गया है। देन उसका जो डिसबर्समेंट है वो प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है। एवरीथिंग यू हैव टू चेक इट एंड यू हैव टू सर्टिफाई इट। ये सर्टिफिकेशन आपको 30 सितंबर तक करना होता है। अगेन जो क्वार्टरली सर्टिफिकेशन है, फॉर्म नंबर 3 इज अ सर्टिफिकेशन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो मैंने अभी ऊपर जो बात की रेरा सर्टिफिकेशन, दिस इज फॉर्म नंबर 3 एंड रेरा ऑडिट इज फॉर्म नंबर 5। ये दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग होने चाहिए। तो फॉर्म 3 साइन करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म 5 साइन नहीं कर सकता है। सो दिस इज मेन पॉइंट। देन ऑब्लिगेशन टू टेक कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जैसे बहुत सी बार बिल्डर करता था, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ले लिया, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट का कंप्लीशन ही लेता नहीं था। नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑन अ प्रमोटर दैट ही हैज टू टेक अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। देन ही कैन नॉट एग्जीक्यूट मॉर्गेज ऑन अ आफ्टर ही एग्जीक्यूट एग्रीमेंट टू सेल। एक बार बिल्डर ने वो पर्टिकुलर फ्लैट अगर एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है पर्टिकुलर अलॉटी को, तो उस पर वो लोन नहीं ले सकते। देन जैसे पहले बताया कि रेक्टिफाई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स 5 साल में आने के बाद, 5 साल के मतलब
जिस टाइम प्रोजेक्ट हैंडओवर हो चुका है अलॉटिस को, उसके 5 साल तक कोई भी अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, देन ही हैज टू रेक्टिफाई इट एट हिज ओन कॉस्ट। देन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस। जब तक प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं होता है, तब तक वो प्रोजेक्ट मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? प्रमोटर पे। देन फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन। जब भी आपका प्रोजेक्ट हो जाता है, कंप्लीशन हो जाता है, उसके 3 महीने के अंदर या फिर 51% अगर आपका प्रोजेक्ट बुक हो चुका है, उसके बाद 3 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट की एसोसिएशन बनाना है, जो सोसाइटी बोलते हैं अलॉटिस की एसोसिएशन। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खास करी गई है प्रमोटर में। तो प्रमोटर हैज टू मेक अ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। एंड जैसे लास्ट 2 पॉइंट्स है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट टाइम भी कंप्लीट नहीं होता है तो अलॉटी को राइट से ही कैन क्लेम द रिफंड अमाउंट as well as interest on the refund amount, and again he can claim the compensation also. Now we are coming to the main area कि जैसे अभी अपने काफी डिस्कशन कर लिए कि रेरा एक्ट एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन लेना कम, हेलो, रेरा एक्ट एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कब नहीं होना चाहिए। So now we have to see the conditions. Section 3(1) says prior registration of real estate with the RERA authority, no advertisement, marketing, booking, selling, offer to sell for inventory purchase. अगर आपको रियल एस्टेट का कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, तो आपको प्रोजेक्ट लेना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है। बट इसमें एग्जम्पशन दिए गए हैं। तो एग्जम्पशन आर मेंशन्ड इन सेक्शन 3(2). फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर, एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ अपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड 8 इंक्लूसिव ऑफ ऑल फेजेस। नाउ फोकसिंग ओनली ऑन फर्स्ट 2 कंडीशन, एरिया ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे लैंड का एरिया देखना है आपको, 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर लैंड है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नाउ नंबर ऑफ अपार्टमेंट, कॉमन पैरेलल्स में जो अपन अपार्टमेंट सोचते हैं, जो एक लॉजिक में सोचते हैं अपार्टमेंट, यहाँ पे अपार्टमेंट का मतलब पूरी बिल्डिंग नहीं है। अपार्टमेंट का मतलब है एक सिंगल डिविजिबल यूनिट जो बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपार्टमेंट अगर मैं 10 फ्लैट की लेता हूँ तो 10 अपार्टमेंट काउंट होते हैं। एक बिल्डिंग में अगर 10 फ्लैट है तो 10 फ्लैट मिलके होते हैं नंबर ऑफ अपार्टमेंट, मतलब 10 अपार्टमेंट काउंट होते हैं। अगर प्रोजेक्ट में 8 यूनिट की अगर ऊपर नहीं है तो प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी नहीं है। टिल 2023 देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट ये दोनों कंडीशन में एंड लेना है या और लेना है। सो अगर दोनों में से पहले कोई भी अगर एक कंडीशन वायलेट हो जाती थी, मतलब अगर आपका प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर के नीचे है, सपोज 300 स्क्वायर मीटर का है, बट नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर 10 है तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है क्या? तो यहाँ पे महारेरा अथॉरिटी ने काफी कंफ्यूजन किया था। अगर मेरी बात करेंगे तो जून 2023 के पहले वो कंपलसरी था, बट जून 2023 में क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर आया है कि ये दोनों कंडीशन आपको अगर पहली कंडीशन मतलब साथ में देखनी है, दोनों कंडीशन अगर क्यूमुलेटिव एक्सीड होती है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। तो रेरा रजिस्ट्रेशन में स्मॉल प्रोजेक्ट जो है वो छोड़ दिए हैं और 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर के जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो कंपलसरी कर दिए। एंड लास्ट 2 कंडीशंस, promoter had received the completion certificate and renovation repair does not involve marketing। ये दोनों केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। तो जो भी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है वो प्रोजेक्ट आपका रेरा में से बाहर निकल जाता है। जैसे मैंने बताया कि 9 जून 2023 को सर्कुलर आया है कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। देन और 2 इंपॉर्टेंट है कि रेरा रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, तो project can be registered only after receiving the commencement certificate. Now, what is commencement certificate? Commencement certificate is given by the municipal authorities. That particular plan is passed by the municipal authority. It is as per the municipal rules and regulation, and the builder is now given a permission to go ahead to register that particular project or to start the work of the project. वो commencement certificate मिलने के बाद ही project register कर सकते, तब तक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन रेरा में नहीं होंगे। और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, जैसे मैंने बताया कि बिल्डर और लैंड ओनर साथ में आके डेवलप कर रहे हैं, देन लैंड ओनर हैज टू बी नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द रेरा।
अगेन द मेन पॉइंट इज कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। नाउ दो कंडीशन आपको देखना है कि लैंड साइज 500 स्क्वायर मीटर के अगर ऊपर है तो ही आपको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइज, अगर आपका लैंड जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर का है, 1000 स्क्वायर मीटर का है, then registration is compulsory or not? Now you have to see the second condition कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितना है। अगर आपका 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली है, बट अगर नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर सपोज आपके 5 ही है तो सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। तो होप सो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट रजिस्ट्रेशन। नाउ सीइंग दिस चार्ट, जो कंडीशन आई है 9 जून 2023 को, जो मैंने आपको बताया कि अगर लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर के नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, इवन दो आपकी नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 से ऊपर होंगे। बिफोर 9 जून 2023 देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, अगर 500 स्क्वायर मीटर के नीचे भी है अगर आपका प्लॉट साइज, पर अगर नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर 8 के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था। बट विद दिस सर्कुलर देयर इज अ क्लैरिटी कि सबसे पहला कंडीशन देखना आपको लैंड एरिया। लैंड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर के नीचे है तो देयर इज नो क्वेश्चन। सेकंड वन, लैंड एरिया इक्वल टू 500 है तो भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ देखना है कि लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है क्या। देन अगर लैंड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो आपको चेक करना है नंबर ऑफ अपार्टमेंट। नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर 8 या 8 के नीचे है देन इट इज नॉट एप्लीकेबल। ओनली इन वन कंडीशन रेराइजेशन कंपलसरी, प्लॉट साइज इज 500 स्क्वायर मीटर एंड अबव, 500 स्क्वायर मीटर अबव, एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ अपार्टमेंट इज मोर देन 8। तो एक कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। तो रेरा रजिस्ट्रेशन इसको कंपलसरी था, कब लेना चाहिए वो मैंने आपको बताया। कब लेना चाहिए के लिए मैं वापस एक बार बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन आप कब भी ले सकते हो, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आ चुका है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आने के बाद ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हो आप। और सेकंड कंडीशन, बिफोर डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट एनी मार्केटिंग। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें। सपोज 1 अप्रैल 2023 को मैंने कोई कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ले लिया, 1 अप्रैल 2023 को, उसके बाद मैंने 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया रेरा, तो इट इज वैलिड और नॉट वैलिड? इट इज वैलिड सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि उस पीरियड में मैंने कोई भी मार्केटिंग, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी ऑफर टू सेल नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई प्रोजेक्ट में पूरा की पूरा मैं ओन फंड से कंप्लीशन करता हूँ और कोई भी मार्केटिंग नहीं करता हूँ, कोई भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करता और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, तो इस केस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल। इसके पीछे भी थीम लाइन यही है गवर्नमेंट का कि जो प्रोजेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो ये सब जो इश्यूज है ये सब इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे कि डाइवर्जन ऑफ द मनी, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट अभी मार्केट में डेवलप हो रहा है कि रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट्स टाइम पे डेवलप होंगे नहीं होंगे, अलॉटी को काफी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो नाउ अलॉटी और जो एंड यूज कस्टमर है वो ये सोचता है कि पूरा बिल्डिंग लेने के बाद ही उस फ्लैट को परचेस करें, मीन्स रेडी टू मूव फ्लैट्स। जो फ्लैट्स रेडी हो चुके हैं, जो कंप्लीशन हो चुके हैं, उनको ही खरीदी करो, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, after RERA registration, we are coming to the second point, RERA bank account. So this is the main amendment in the RERA Act. Section 4(2) LD said that कि जो भी अमाउंट आपको अलॉट से मिला है वो आपको अलग से रेरा अकाउंट्स में रखना है। 70% अमाउंट आपको अलग से रखना है। So in RERA registration, you have to open separate bank accounts, that is called as RERA bank accounts. अलॉट से जो भी पैसा आया है उसमें का अमाउंट आपको उसमें जमा करना है। कितना मिनिमम आपको रखना है? 70% अमाउंट आपको अलग से रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सी बार मुझे पूछा जाता है कि ये रेरा अकाउंट अलग से ओपन करना जरूरी है कि जो नॉर्मल बैंक अकाउंट्स आपको किए है वो चल सकते हैं? द आंसर इज सिंपल कि रेरा बैंक अकाउंट आपको अलग से मेंटेन करना है। रेरा बैंक अकाउंट आपको शेड्यूल्ड बैंक में ही ओपन करना है। देन अगर आप जो अमाउंट फ्लैट का आपका एग्रीड है उसके अलावा कोई अमाउंट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 करोड़ का फ्लैट है और उस पर अगर आपको जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी के अमाउंट आप रेरा अकाउंट में नहीं लेते हो,
GST अलग से अलग अकाउंट में लेते हो तो दैट इज एग्रीड अमाउंट. रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट टू ओनली ओपन इन अ शेड्यूल बैंक. देन नेक्स्ट वन, कि अकाउंट कब तक मेंटेन करना है. जैसे पूरा रेरा था, रेरा कब तक एप्लीकेबल है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट. एक बार प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट म्युनिसिपल अथॉरिटी देने वाली है और आर्किटेक्ट को सर्टिफाई करना है कि कंप्लीशन हो चुका है. ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए रेरा अथॉरिटी, देन दैट प्रोजेक्ट इज आउट ऑफ रेरा प्रीव्यू. तो एक बार प्रोजेक्ट को कंप्लीशन मिल गया और फॉर्म नंबर 4 अगर सबमिट कर दिया है, देन प्रमोटर हैज नॉट टू मेंटेन द रेरा अकाउंट. रेरा अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे बहुत सी बार कंफ्यूजन है कि रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट जो है वो एस्क्रो अकाउंट है. तो आंसर इज नो, इट इज नॉट एन एस्क्रो अकाउंट, बट इट इज गवर्न बाय द रेरा रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको बैंक को सबमिट करने डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ही वो अमाउंट फ्री होती है. देन अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, जॉइंट डेवलपमेंट में दो पार्टी, लैंड ओनर एक है और प्रमोटर एक है, तो दोनों को भी रेरा अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी. यहाँ पे रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के बारे में बताया मैंने आपको, बट होप सो इसमें मोर क्लैरिटी लाना जरूरी है. इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कि आपको ये पॉइंट्स काफी अच्छे से क्लियर हो. नाउ देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ द रेरा बैंक अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द बैंकिंग सिस्टम. कोई बैंक 3 अकाउंट ओपन करती है. फर्स्ट वन इज कलेक्शन अकाउंट, सेकंड वन इज अ रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एंड थर्ड वन इज करंट अकाउंट. और कोई बैंक ओपन करती है सिर्फ कलेक्शन अकाउंट. कोई भी टाइप का बैंक अकाउंट ओपन करो, मैकेनिज्म ऑफ द बैंक, मतलब रेरा जो अकाउंट है उसका जो मैकेनिज्म है वो सेम रहने वाला है. ये तो डिपेंडिंग ऑन बैंक मोड्स ऑपरेंडी. कुछ बैंक 3 अकाउंट ओपन करती है, कुछ बैंक बोलती है कि रेरा का हम एक अकाउंट ओपन करेंगे और आपका करंट अकाउंट आप कहीं पे ऑपरेट करो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर प्रोजेक्ट वाइज. जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लिया है उस तरह से रेरा बैंक अकाउंट ओपन खोलेंगे. एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्डर हूँ और बिल्डर के सपोज मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3 रेरा नंबर है मेरे पास, तो हर नंबर वाइज अलग अलग बैंक अकाउंट होंगे. जिस प्रोजेक्ट का मैं फ्लैट सेल कर रहा हूँ उससे जो कलेक्शन होने वाला है, पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए जो रेरा नंबर दिया है मैंने, बैंक अकाउंट दिया है, उसमें ही जमा होना. अब कमिंग टू द मोडस ऑपरेंडी किस तरह से होंगी. सपोज अलॉटी का फ्लैट है 1 करोड़ रुपए का और उसने 10 लाख का चेक दिया हुआ, देन दैट 10 लाख रुपीज चेक इज टू बी डिपॉजिटेड इन कलेक्शन अकाउंट. तो अगर फर्स्ट टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि जहाँ पे 3 अकाउंट ओपन होते हैं, तो 10 लाख का जो चेक था वो कहाँ जमा हो गया, कलेक्शन अकाउंट में जमा हो गया. देन एट द डे एंड बैंक स्वीप्स 2 अकाउंट, मतलब बैंक क्या करती है, उसको ऑटो स्वीप करती है. तो कलेक्शन अकाउंट में 10 लाख का चेक जमा हुआ, डे एंड पे क्या होने वाला, 10 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे, तो कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा. नाउ 70% मतलब 7 लाख रुपए कहाँ चले जाएंगे, रेरा अकाउंट में चले जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज अ रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट. 7 लाख रुपए वहां जमा हो गए, 3 लाख रुपए जो है वो आपके करंट अकाउंट में चले गए. नाउ द रेरा अथॉरिटी 3 लाख रुपए आप कहाँ खर्चा करते हो, आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, आप विड्रॉवल कर रहे हो, इसमें रेरा अथॉरिटी विल नॉट गवर्न. रेरा अथॉरिटी बोलती है कि 70% जो अमाउंट है, जो 7 लाख रुपए है, ये आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे ही खर्चा कर सकते हो, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ही खर्चा कर सकते हो. तो मोडस ऑफ ऑपरेंडी आपको समझ में आई. 10 लाख रुपए जमा हुए, 7 लाख रुपए चले गए रेरा अकाउंट में, 3 लाख रुपए चले गए फ्री अकाउंट में. फ्री अकाउंट की अमाउंट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. 7 लाख रुपए को आपको सर्टिफिकेट देना है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3. ये फॉर्म 3 जो है बताया मैंने आपको, एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है, एक इंजीनियर का सर्टिफिकेट है और एक सीए का सर्टिफिकेट है. वो लिख के देंगे कि इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हुआ है, और जितना खर्चा हुआ है उतनी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड केस में जो बताया मैंने, कुछ बैंक क्या करती है, एक ही अकाउंट खोलती है, उसमें क्या करती है, वो 10 लाख रुपए का चेक उस अकाउंट में जमा कर देती है. 10 लाख में से 30% अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देती है करंट अकाउंट में, मतलब 3 लाख रुपए चले गए. ना उस अकाउंट में कितने रुपए जमा हुए, 7 लाख रुपए, और इस 7 लाख रुपए हो गया तुम्हारा रेरा. तो उसमें जो ऑटो स्वीप करके 2 अकाउंट ओपन करने की जरूरत है वो नहीं करते हैं. यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा 10 लाख रुपए का, उसमें से 30 तक का अमाउंट आपका चला जाएंगे करंट अकाउंट में, जिसके लिए रेरा एप्लीकेबल नहीं है. और जो जो बैलेंस अमाउंट बचा 7 लाख, वो तभी विड्रॉ कर पाएंगे आप जब आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. नाउ एग्जांपल लिया मैंने इसमें कि ये और
इलॉबरेट हुए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेरा एक्ट में। सपोज आपका जो टोटल कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट 3 करोड़ का है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 करोड़ हो चुका है, अप्रूवल कॉस्ट 5 करोड़ है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अराउंड 7 करोड़ रुपए, टोटल कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है अपना 40 करोड़ रुपीज, और आपको अलॉटी से 60 करोड़ रुपए मिले। पहले क्या करता था बिल्डर, 60 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लेता था, खर्चा कितना हुआ है 40 करोड़ रुपए, बट 60 के 60 करोड़ विड्रॉ कर लेता था। नाउ आफ्टर रेरा 40 करोड़ रुपए आपका खर्चा हुआ है, अलॉटी से कितना मिला आपको 60 करोड़ रुपए। पहले 60 करोड़ रुपए कहाँ जमा करेंगे आप, कलेक्शन अकाउंट में, तो 60 करोड़ विल बी डिपॉजिट इन कलेक्शन अकाउंट। एट द डे एंड क्या होगा, रेरा अकाउंट में जाएगा 70% अमाउंट, दैट इज 42 करोड़ रुपीज, और फ्री करंट अकाउंट में चला जाएगा 18 करोड़। तो 18 करोड़ रुपए आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, रेरा विल नॉट बी आस्किंग यू एनी क्वेश्चन। बट ये 42 करोड़ रुपीज जो है, ये आपको तभी विड्रॉ करने मिलेगा जब आप फॉर्म नंबर 1, 2 और 3 सबमिट करेंगे। अभी अपने केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है कि 40 करोड़ रुपीज खर्चा हो चुका है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आर्किटेक्ट ने भी उतना सर्टिफाई करके दिया है, इंजीनियर ने भी और सीए ने भी। इवन दो अकाउंट का बैलेंस 42 करोड़ होगा, बट आपका खर्चा कितना हुआ है 40 करोड़ रुपया। ये 3 सर्टिफिकेट में जो लोअर अमाउंट होंगे, सपोज ये 40 करोड़ रुपीज है, तो 40 करोड़ रुपीज विड्रॉ कर सकते हो, फिर भी उस बैंक अकाउंट में कितने रुपए जमा रहेंगे 2 करोड़ रुपए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 करोड़ रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो क्या? एज ऑफ डेट ये 2 करोड़ रुपए आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। सपोज एक महीने बाद आपका जो 40 करोड़ का खर्चा है, अगर सपोज 50 करोड़ हो गया और बाद में कोई कलेक्शन नहीं हुआ है, तो वापस आपको फॉर्म नंबर 1, 2, 3 बैंक को सबमिट करना पड़ेगा, सेइंग दैट कि मेरा पहला 40 करोड़ का था वो तो दिया आपको, और मेरा भी 50 करोड़ हो चुका है, मतलब 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हो चुका है। तो फिर ये सर्टिफिकेट लेने के बाद ये जो 2 करोड़ रुपए आपका ब्लॉक हुआ है अमाउंट, वो विड्रॉ करने मिलेगा। नाउ अभी तक मैं जो बात कर रहा था, 70% की बात ही कर रहा था कि एक्ट में प्रिस्क्राइब करा गया है कि 70% अमाउंट आप रेरा अकाउंट में रखना कंपलसरी है, और 70% के ऊपर का अमाउंट आप करंट अकाउंट में डाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि सपोज अभी जो बैलेंस प्रोजेक्ट बचा है, वहां पे कॉस्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट है 100 करोड़ रुपीज। कितना है 100 करोड़ रुपीज। एस्टिमेटेड रिसीवेबल आउटगोइंग है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कितना है 80 करोड़ रुपए। मतलब यहां से अगर मैं आगे देखता हूँ मेरे प्रोजेक्ट को, मेरे को कितना खर्चा लगने वाला है 100 करोड़ रुपए लगने वाला है, और मुझे पैसा कितना मिलने वाला है 80 करोड़ रुपया, सो दैट माई प्रोजेक्ट इज इन डेफिसिट ऑफ 20 करोड़ रुपीज। अभी यहाँ पे रेरा का ओरिजिनल थीम लाइन देखो कि भाई आपको जो अलॉटी से पैसा मिलने वाला है उसी में से आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो ये केस में आपको 70% नहीं जमा करना है, 100% जमा करना है। क्यों? क्योंकि जो अलॉटी का पैसा आ रहा है और आपका जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, इसमें से पूरा रिकवर नहीं होने वाला। कमिंग टू द बैक एग्जाम्पल, कॉस्ट इनकर्ड कितना है अपना 40 करोड़ है, अलॉटी से कितना मिला आपको 60 करोड़ रुपए मिला है, कलेक्शन अकाउंट में कितना डाला है 60 करोड़ डाला है। अभी फ्यूचर अपना क्या प्लानिंग है कि अपने को 100 करोड़ रुपए खर्चा लगने वाला है और 80 करोड़ का कलेक्शन है। तो ये जो 70% की कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4, यहाँ पे कितना एप्लीकेबल हो जाएगा 100%। मतलब आपको करंट अकाउंट में 1 रुपया भी मिलेगा नहीं, आपको पूरा रेट अकाउंट में कितना चला जाएगा 60 करोड़ रुपीज। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन वन कंडीशन वेयर estimated cost of project is more than receivable project। यहाँ पे बीइंग कंसल्टेंट बहुत सी बार क्या करते हैं कि प्रमोटर क्या करता है कि बैंक को थोड़ी मालूम पड़ने वाला है, तो प्रमोटर क्या करता है 70% का यूटिलाइजेशन कर लेता है, तो 42 करोड़ 18 करोड़ वो फ्री यूज करता है। बट जब रेरा ऑडिट कर रहे हो आप, अगर आप रियल एस्टेट का कोई ऑडिट कर रहे हो, रेरा ऑडिट फॉर्म नंबर 5, तो आपको ये चेक करना है कि ये 70% ही एप्लीकेबल क्लॉज था यहाँ पे कि 100%, क्योंकि इस केस में 60 करोड़ डिपॉजिट होने के बाद आपको सिर्फ विड्रॉल कितना मिलता था 40 करोड़, 20 करोड़ रुपीज आपको आप पेंडिंग होता था रेरा बैंक अकाउंट में। फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रमोटर कौन हो सकता है, लैंड ओनर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, बिल्डर्स, डेवलपर, एनीवन हु कंस्ट्रक्ट्स द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड व्हिच इज अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। देन मैंने बताया कि प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, रेरा एक्ट के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। देन मैंने बताया कि रेरा रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी था। देन रेरा बैंक अकाउंट के बारे में बताया मैंने। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द अलॉटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आने वाले फ्यूचर पीरियड में
अलॉटी को अपने को कंसल्टेंसी देना पड़ेगा कि अगर आप कोई बड़ा फ्लैट ले रहे हो, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, आस्क फॉर एन कंसल्टेंसी, वी विल स्टडी प्रोजेक्ट फॉर योरसेल्फ, फॉर यू, कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या अवेलेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट किस तरह से पढ़ना चाहिए और एक अच्छा डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए। नाउ अलॉटी का मतलब भी सेक्शन 2D में डिफाइन किया है रेरा एक्ट में। द पर्सन टू whom a plot or apartment or building as the case may has been allotted, sold or transferred by the promoter, include the person who subsequently acquired said allotment but does not include on a rent। तो यहाँ पे जो भी पर्सन को कोई पर्टिकुलर अपार्टमेंट अलॉट हो रहा है या बेचे जा रहा है, then that particular person is called as an allotee। उस पर्सन ने अगर वो फ्लैट से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है, जो सेकंड पर्सन है वो भी कॉल होगा अलॉटी। बट अगर आपने घर लिया हुआ रेंटल, तो जो रेंटल ले रहा है पर्सन, दैट विल नॉट बी एन अलॉटी। नाउ अगेन द डेफिनेशन ऑफ अलॉटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्ट में जो उसके राइट्स दिए गए दैट इज अवेलेबल ऑन टू अलॉटी ओनली। अगर आप अलॉटी नहीं हो तो आपको जो जो राइट्स दिए गए वो आपको मिलेंगे नहीं। तो अलॉटी में सिंपल है, अगर आपने कोई फ्लैट परचेस किया हुआ है, सेकंड टाइम भी मतलब डायरेक्ट प्रमोटर से लिया है या फिर आपने दूसरे पर्सन से परचेस किया है, तो भी आप अलॉटी होंगे। बट आपने अगर रेंटल पे लिया है तो अलॉटी नहीं होंगे। कमिंग टू द राइट्स ऑफ द अलॉटी, सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड द वेरियस राइट्स एज वेल एज द ड्यूटीज ऑफ द अलॉटी। अलॉटी को क्या राइट्स होंगे, अलॉटी की क्या ऑब्लिगेशन होंगे, वो सेक्शन 19 में बताएंगे। फर्स्ट वन, राइट ऑफ द अलॉटी टू ऑब्टेन सैंक्शन प्लान एंड लेआउट। जैसे जो राइट से अलॉटी के, दीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर। जो राइट से वो ऑब्लिगेशन हो जाएंगे प्रमोटर को। जैसे आपने देखा कि प्रमोटर को क्या करना था, सब सैंक्शन प्लान रजिस्ट्रेशन के टाइम सबमिट करना था, और सैंक्शन के बाद अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी आपको अपलोड करने थे। सो वेब पोर्टल पे वो सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। सेकंड वन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड स्टेज वाइज कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर कि प्रोजेक्ट के बारे में उसको क्वार्टरली या टाइम टू टाइम अपडेट करना है कि कितना खर्चा हुआ, अलग अलग प्रोफेशनल के सर्टिफिकेट सबमिट करने, तो वो सर्टिफिकेट अलॉटी ले सकता है। राइट टू क्लेम पोजीशन, अगर बिल्डर ने बोला है कि 3 साल के बाद प्रोजेक्ट देने वाला हूं मैं, तो 3 साल के बाद अलॉटी का राइट है कि वो पर्टिकुलर पोजीशन वो क्लेम कर सकता है। अगर बिल्डर उस टाइम पे पोजीशन नहीं देता है तो अलॉटी हैज टू राइट टू कैंसिल दैट पर्टिकुलर डील, आस्क फॉर हिज मनी विथ इंटरेस्ट एंड कॉम्पेंसेशन। अगर म्यूचुअली एग्री हो जाता है कि भाई तुमको और 1 साल दिया जाता है, तो इन दैट केस ऑल्सो ही कैन क्लेम द इंटरेस्ट अमाउंट। राइट टू ऑब्टेन नेसेसरी डॉक्यूमेंट पोस्ट पोजीशन, तो बहुत सी बार इस तरह से होता है कि प्रोजेक्ट के बाद फ्लैट को हैंड ओवर हो जाता है, बट जिस तरह से मैंने बताया कि कॉमन एमिनिटीज होती है कि भाई आपने अगर जिम बोला हुआ है, गार्डन स्पेस बोली हुई है, स्विमिंग पूल बोला है, तो उसका भी राइट है कि पोस्ट पोजीशन भी वो कॉमन एमिनिटीज क्लेम कर सकता है जो भी एग्रीड हुई है एट द टाइम ऑफ सेल। तो ओवरऑल अलॉटी के राइट्स की अगर बात करूं मैं, तो जब भी प्रमोटर ने अलॉटी को फ्लैट बेचा था, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे बेचा हुआ था, जो भी सेल प्रपोजिशन थे कि भाई ये करके दूंगा वो करके दूंगा, वो सब क्लेम करने का राइट्स है अलॉटी। नाउ कमिंग टू द ड्यूटीज, जिस तरह से राइट्स है उस तरह से ड्यूटीज भी हैं, कि जो भी एग्रीमेंट में टाइम कहा हुआ है कि इस टाइम में आपको पेमेंट करना है, तो उस टाइम पे अलॉटी ने प्रमोटर को पेमेंट करना चाहिए। अगर अलॉटी ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है तो ही इज आल्सो लायबल फॉर द इंटरेस्ट। तो एक्ट इज वेरी न्यूट्रल बिटवीन प्रमोटर एंड अलॉटी, तो जिसकी भी गलती है ही हैज टू पे। तो इंटरेस्ट अगर पे करना है और अगर इंटरेस्ट में अगर कम करना है तो रिडक्शन अगर कुछ करना है, तो बोथ कैन म्यूचुअली मतलब प्रमोटर अलॉटी कैन डिस्कस एंड रिड्यूस द इंटरेस्ट। ड्यूटी इन फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन, जैसे आपको बताया कि 51% फ्लैट बुक होने के बाद प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एसोसिएशन बनाना चाहिए अलॉटीज की, या फिर कंप्लीशन होने के बाद 3 महीने के अंदर। तो अलॉटी का ड्यूटी दिया गया है कि ही शुड पार्टिसिपेट एंड ही शुड बी हेल्प टू द प्रमोटर टू फॉर्म एन एसोसिएशन। ड्यू टू टेक द फिजिकल पोजीशन, कि अगर उसने पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीशन करने के बाद प्रमोटर ने अगर हैंड ओवर कर रहा है तो उसका ड्यूटी है कि पोजीशन लेना चाहिए। ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस,
अगर ये सब क्लॉजेस में अगर अलॉटी कहीं पे फेल्यूर होता है, then promoter can also go against that allotee to the RERA authority. So RERA authority is central कि रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर और अलॉटी इसमें से किसी की भी अगर राइट्स एंड ड्यूटीज में ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है, then they can make an application to the authority. नाउ जिस तरह से बताया मैंने कि क्यों रेरा एक्ट सीरियसली पढ़ना चाहिए या फिर इसका ऑब्लिगेशन इतना सीरियस क्यों है, तो आप, मैं यहाँ पे क्लॉजेस नहीं जा रहा हूँ वन बाय वन, सिर्फ आप देख लीजिए कि जो कंडीशन है, पेनल्टीज की जो कंडीशन है, 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. सपोज एक प्रमोटर एक बिल्डिंग बना रहा है, उसका कॉस्टिंग अगर 5 करोड़ रुपए है, तो पेनल्टीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम 5 to 10%, मतलब 25 लाख या 30 लाख का. So these are the very heavy penalties. Coming to the allotee also, 5% of the property cost. मतलब अगर वो 50 लाख का फ्लैट ले रहा है तो उसको 5% मतलब 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी. तो यहाँ पे adherence to the norms of the RERA Act is very compulsory. और पेनल्टीज हेवी करने का रीजन ही है कि that builders should adhere to the all and rules and regulation of the RERA Act. Now coming to this, कि ये सब तो बातें हो गई अपनी कि किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए. अभी सीए फर्टर्निटी के लिए इसमें क्या क्या रोल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से मैंने बताया आप सबको कि 2016 में एक्ट आया हुआ है, अभी तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुआ है इसमें. तो it is a duty of a chartered accountant or our fraternity that we should make client awareness. जैसे मैंने इतनी सारी क्लॉजेस बताए, अभी भी बिल्डर काफी जिनको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है बट फिर भी नहीं कर रहे हैं. तो वी शुड मेक क्लाइंट अवेयरनेस. और कोई भी एक्ट जब नया आता है तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है कि दैट वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस. तो अपने पास जो भी क्लाइंट्स हैं उनको जो जो एप्लीकेबल है, अलॉटी को भी आप डिस्कस कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर क्लाइंट अवेयरनेस एंड कंसल्टेंसी. कि कंसल्टेंसी में जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि रेरा आपको बेसिक प्रोविजंस बता रहा हूँ, यहाँ पे रेरा स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हो सकती है कि कब रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, क्या ऑब्लिगेशंस है और उसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. देन कमिंग टू द कंप्लायंसेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर बात करूँ मैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 फॉर्म्स कंप्लायंस में सबमिट करना है. वन इज फॉर्म नंबर 3 एंड फॉर्म नंबर 5. फॉर्म नंबर 5 इज अ ऑडिट पोर्शन, फॉर्म नंबर 3 इज अ सर्टिफिकेशन कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना सर्टिफाई हो रहा है. अगेन as compared to other professional, for example architects and engineers, they are more into technical part of the projects, but chartered accountant के पास एक सेटअप है कि प्रोजेक्ट के लिए वो स्टार्ट टू एंड तक कंसल्टेंसी दे सकता है. मीनिंग दैट प्रोजेक्ट कब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन से लेके उसको टाइम टू टाइम कब अपडेट करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से इश्यू करना है, एडवर्टाइजमेंट इज प्रॉपर एज पर एक्ट और नॉट, और आगे क्या क्या राइट्स है, ड्यूटीज है, अलॉटी की अगर कोई कंप्लेंट आती है, हाउ टू हैंडल इट, ऑल दिस विल पार्ट फ्रॉम अवर चार्टर्ड अकाउंटेंट. So overall, I will suggest कि before going into the opportunities, understand the RERA Act in detail. RERA Act को समझने की कोशिश करो. Then promoters, allottees की क्या rights है, क्या obligation है, पहले वो समझो. Then go for compliance part. Compliance part कोशिश करो कि builders कितने compliances follow कर सकते हैं, उसे करवाने की कोशिश करो. And then go on consultancy part. Now different forms under RERA. जैसे मैंने बताया 5 फॉर्म इंपॉर्टेंट है. मैंने अब तक 3 ही फॉर्म बताए थे आपको. फॉर्म नंबर 1 आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट. आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देता है कि परसेंटेज कंप्लीशन प्रोजेक्ट कितना हुआ है. फॉर्म नंबर 2 इंजीनियर सर्टिफिकेट. इंजीनियर सर्टिफाई देता है अमाउंट, कितना अमाउंट खर्चा हो चुका है. नाउ डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर सर्टिफिकेट. आर्किटेक्ट परसेंटेज टर्म में बोलता है कि 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है. इंजीनियर बात करता है अमाउंट टर्म में कि इतने रुपए का खर्चा हो चुका है. नाउ 2A क्वालिटी एश्योरेंस. दिस फॉर्म इज टू बी सबमिटेड आफ्टर द ईयर एंड. आपको इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेना है कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो क्वालिटी पैरामीटर्स प्रॉपर्ली एडहियर हुए हैं नहीं हुए. फॉर्म नंबर 3 सीए सर्टिफिकेट फॉर विड्रॉल फ्रॉम डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट. डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट से अगर कुछ अमाउंट विड्रॉ करनी है तो उसका सर्टिफिकेट देंगे. फॉर्म नंबर 1, 2, 3 ये आपको जब भी बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है, जब भी मैं बैंक अकाउंट का नाम बोलूंगा तो यहाँ पे आएगा रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट. तो 3 में से अगर जब भी पैसा निकालना है
तो तीनों सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना जरूरी है। तीनों सर्टिफिकेट में जो लोअर अमाउंट होंगी उतना आपको विड्रॉवल मिलेगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन ऑफ अ रजिस्टर प्रोजेक्ट। कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है म्युनिसिपल अथॉरिटी से, देन आर्किटेक्ट हैज आल्सो हैज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। वो दोनों सबमिट करना पड़ता है आपको रेरा अथॉरिटी पे। वंस यू सबमिट फॉर्म नंबर 4, द प्रोजेक्ट रेरा इज क्लोज। तो अगर आपको रेरा प्रोजेक्ट कोई भी कंप्लीट करना है तो आपको फॉर्म नंबर 4 सबमिट करना है along with municipal authorities completion order. Last one is audit annual report of withdrawal from designated bank account, form number 5. फॉर्म नंबर 3 और 5 जो है वो सीए को सर्टिफाई करने हैं। अगेन फॉर्म नंबर 3 जो सर्टिफाई करना है वो पर्सन, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म नंबर 5 सर्टिफाई नहीं कर सकता है। तो फॉर्म नंबर 3 सर्टिफिकेशन एंड फॉर्म नंबर 5 हैज टू बी बाय टू डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नाउ अपडेट्स के बारे में बताया मैंने कि अपडेट कब कब करना है। जैसे अपन ने देखा कि पूरे वेबिनार में अपन बात कर रहे हैं कि दैट बिल्डर हैज टू अपडेट प्रोजेक्ट ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस। तो इसके बारे में रेरा के जो ऑर्डर्स आई है, फर्स्ट वन इज क्वार्टरली अपडेट। तो क्वार्टर में क्या क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो क्वार्टर की ड्यू डेट रहती है 20 तारीख। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना जून 23 क्वार्टर चल रहा है, अप्रैल टू जून जो क्वार्टर है इसका आपको सबमिशन करना है 20 जुलाई तक। सिमिलरली ऑन नेक्स्ट वन, इसमें आपको करना है कि बिल्डिंग प्लान में अगर कोई चेंजेस हुए तो फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे पैरामीटर्स दिए गए कि कितने स्लैब्स हुए हैं, कितना वॉल कंप्लीशन हुआ है, देन एक्सट्रैक्शन वर्क कितना हुआ है। तो आपको प्रोग्रेस देना है कि सपोज पिछले क्वार्टर में कितना था, अभी क्वार्टर में कितना हुआ। तो ये सब चीजें आपको वेब पोर्टल पे अपडेट करनी है। वंस यू अपडेट दिस प्रोजेक्ट्स ऑन अ वेब पोर्टल, अलॉटी कैन एक्सेस ऑल दिस कि पिछले पीरियड में कितना प्रोजेक्ट था, अभी क्या स्टेटस है। देन बुकिंग, आप अगर बिल्डर के पास जाते हो तो बिल्डर हमेशा बोलते हैं कि 2 फ्लैट बाकी है, 1 फ्लैट बाकी है, कितना फ्लैट बाकी है। आप साइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कितने फ्लैट्स एक्चुअल बाकी है। तो बिल्डर हैज टू अपडेट ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाट इज इन्वेंटरी अवेलेबल। तो कौन सा फ्लैट अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कितने बेचे, आपको सब इन्फॉर्मेशन क्वार्टरली बेस पे देना है। कमिंग टू द एनुअल अपडेट, फॉर्म नंबर 5 एनुअल अपडेट आपको 6 महीने के अंदर करना है। फॉर्म 2A जो है वो विद इन 3 मंथ करना है, क्वालिटी अश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो जो पहले फॉर्म बताया मैंने फॉर्म 1, 2, 2A भी था, तो 2A जो है वो इंजीनियर का है, क्वालिटी अश्योरेंस ये ईयरली आपको देना है। देन जब भी आपको बैंक अकाउंट में से पैसा निकालना है, रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट, आपको तीनों सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं, फॉर्म नंबर 1, 2, 3 टू द बैंक, और एज वेल एज ये सब फॉर्म आपको सबमिट करना है वेबसाइट। तो जब भी आपको बैंक से पैसा निकालना है तब पहले आपको वेबसाइट पे अपडेशन करना है, उसके बाद वो फॉर्म्स आपको देने बैंक को, देन एंड देन ओनली बैंक विल अलाउ यू द विथड्रॉल ऑफ द अमाउंट। देन अदर अपडेट्स, अगर आपने जब प्रोजेक्ट लिया तब उस पर कोई चार्ज नहीं था, बट उसके बाद अगर आपने चार्ज लिया है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद जो सेल हो चुका है उस ब्लॉक पे आप कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो वो जो चार्ज है आपको अपडेट करना है वेबसाइट पे। प्रोफेशनल पे अगर कोई भी डिटेल चेंजेस होता है तो आपको वो अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट अगर आप चेंज करते हो, सीए चेंज करते हो, इंजीनियर चेंज करते हो, तो आपके चेंजेस आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना है। देन आपने अगर एसोसिएशन बनाई है अलॉटी की तो वो अपडेट करनी है। कोई लिटिगेशन आया है प्रोजेक्ट पे, तो ओवरऑल थीम लाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि जो अपडेट्स है इससे आपको इन्फॉर्म करना है अलॉटीज को हमारे प्रोजेक्ट में क्या शुरू है। देन फिफ्थ वन इज कंप्लीशन। अगर आर्किटेक्ट का फॉर्म नंबर 4 अगर आपने सबमिट कर दिया है along with the completion certificate from the municipal authority, then that project will be said as completed projects. Or once you say the project is completed as per the RERA Act, जो रेरा बैंक अकाउंट है उसमें जो भी बैलेंस अमाउंट बचा रहेगा that is free for use. Then कन्वेंस डीड अगर बनाई है आपने प्रमोटर एसोसिएशन है तो वो आपको 3 महीने के अंदर सबमिट करना है। तो ओवरऑल दीज आर द अपडेट्स ऑफ द रेरा एक्ट और ये बिल्डर्स को करना है। अभी मीनवाइल लास्ट ईयर की अगर बात करूं मैं, तो रेरा अथॉरिटी वाज नॉट सो मच एग्रेसिव फॉर दिस कंप्लायंसेस, बट दिस ईयर दे आर वेरी एग्रेसिव। अगर इसमें से कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है तो रेरा अथॉरिटी आर सबमिटिंग ऑनलाइन क्यूरी टू दैट पर्टिकुलर बिल्डर
and builder has to reply these queries. अगर satisfaction answers नहीं मिले और मेल के बाद अगर आपकी compliances नहीं है, the RERA authorities are very strict for the penalties. So friends, overall मैंने अभी तक आपको बताया कि promoters के rights duties, then important provisions of RERA registration, RERA designated bank account, then quarterly updates, various forms, allotee rights. Now at the last, मेरे को कुछ ऑनलाइन बताना है आपको कि रेरा महारेरा को आपको ये सब प्रोजेक्ट को कंसल्टेंसी करना है तो किस तरह से कर सकते हो आप, या फिर डॉक्यूमेंट अगर आपको चेक करना है तो किस तरह से आप चेक करेंगे। और ओवरऑल अभी जो महारेरा की वेबसाइट है 30 जून को न्यू फॉर्म में आ रही है, अभी देखते हैं अपन वो चलते आगे किस तरह से होगा। सो स्क्रीन दिख रही है सबको, वेबसाइट दिख रही है एनीवन? सो अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ एवरीथिंग इज वेब पोर्टल बेस्ड। सर वेबसाइट नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं, जस्ट अ मिनट। अभी? हाँ सर अब दिख रहा है। पक्का, ओके, थैंक यू। Yes. जैसे मैंने बताया कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो कोई भी प्रोजेक्ट का अगर आपको स्टडी करना है तो आप वेब पोर्टल पे जाके स्टडी कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, स्टार्ट से ही बताता हूँ आपको लगे। तो महारेरा का आपने डाला गूगल में कि फर्स्ट वेबसाइट आपकी महाराष्ट्र की महारेरा की, तो जो महाराष्ट्र में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी रजिस्टर्स हैं, वो सब रजिस्टर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे महाराष्ट्र अगर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक्ट, रूल्स, ऑर्डर्स, रेगुलेशन, सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी। तो रूल्स में अगर आप जाते हो तो जो डेली अपडेशंस हो रहे हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। कमिंग टू द, अगर कोई प्रोजेक्ट का सर्च करना है आपको, डॉक्यूमेंट किस तरह से देखना है, क्या देखना है, तो रजिस्ट्रेशन में आना है आपको, रजिस्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से विंडो होती है, सर्च प्रोजेक्ट डिटेल। तो जो प्रोजेक्ट वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है उस सब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, रजिस्टर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप 3 टाइप से सर्च कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट का नाम पता है तो प्रोजेक्ट का नाम, नंबर, जैसे मैंने आपको बोला कि एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई नंबर मिलता है आपको कि ये प्रोजेक्ट इस नंबर से रजिस्टर, तो नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको सिर्फ प्रमोटर का नाम अगर पता है तो उस तरह से भी आप सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे जलगांव डालने के बाद जो भी प्रमोटर का नाम है उस पर से सर्च हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रमोटर का नाम जलगांव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट का नाम आ गया यहाँ पे। लास्ट मॉडिफाइड डेट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपडेट्स होते हैं, तो ये अपडेट अभी लास्ट टाइम कब हुए हैं, 21 अप्रैल को हुए हैं। इसी का मीनिंग मार्च तक के अपडेट इसमें कवर हो चुके हैं। जून के अपडेट कहाँ तक करने हैं आपको, 20 जुलाई तक करने। देन अगर उसका सर्टिफिकेट देखना है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हो। एप्लीकेशन देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो। और व्यू डिटेल में जाएंगे अपन, तो व्यू डिटेल में जाने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टार्ट टू एंड तक सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो अगर आपके पास अगर कोई अलॉटी आता है तो आप अलॉटी को गाइड कर सकते हो कि भाई कोई भी फ्लैट परचेस करने के पहले आप पहले उसका पूरा देखो, डिटेल्स, डॉक्यूमेंट स्टडी करो, उसके बाद ही आप डिसीजन लो। तो ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेब पोर्टल पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक कंपनी का नाम हो गया, डू यू हैव पास्ट एक्सपीरियंस, अगर पिछले कोई एक्सपीरियंस अगर उसने शेयर करे है तो यहाँ पे दिख जाएंगे। देन उसका एड्रेस आ गया, उस कंपनी का एड्रेस क्या है, डिटेल्स आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको फोन पे कॉन्टैक्ट करना तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। देन उसमें उसके मेंबर्स के नाम आ जाएंगे आपको कि उसमें कौन कौन से डायरेक्टर्स है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन है। देन प्रोजेक्ट नेम,
प्रोजेक्ट स्टेटस और ये जो दिख रहा है प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2025। तो ये डेट जो मैं स्टार्ट से एंड तक बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर डिलीवरी डेट बताई, तो 31 मार्च 2025 तक अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो इस प्रोजेक्ट के बाद आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो किसी को, महार अथॉरिटी, या फिर आपको इस पे से ये भी अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होने वाला है, 31 मार्च 25। नाउ कमिंग टू द कंसल्टेंसी पार्ट टू द बिल्डर। जनरली बिल्डर क्या बोलता है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट 1 से 1.5 साल में हो जाएंगे, बट अगर अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन कंसल्टेंट उसके, तो उसको बोलते हो कि ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद ये डेट डाल। अगर इसके पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो इट इज वेल एंड फाइन, पर इसके बाद हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, तो सेफर साइड में कुछ एक्सटेंशन ग्रेस पीरियड इसमें ऐड करके। नाउ कमिंग टू द लिटिगेशन पार्ट, कि उस प्रोजेक्ट पे कोई लिटिगेशन है या नहीं है। देन कोई दूसरा कोई प्रमोटर है क्या उस प्रोजेक्ट में, प्रमोटर अगेंस्ट वो डेफिनेशन कि भाई कॉन्ट्रैक्टर लैंड ओनर कोई प्रोजेक्ट प्रमोटर है क्या, तो इसमें नहीं है। देन प्रोजेक्ट की साइट की डिटेल आई पूरी, कितना प्रोजेक्ट है, उसके बाउंड्रीज क्या है। जनरली आप कोई भी सेल एग्रीमेंट देखोगे तो आपको उसको बाउंड्रीज मिलती है, तो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कौन सी बाउंड्रीज है उसकी। देन यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लॉट साइज कितना है, तो वो जो लैंड जिसपे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका स्क्वायर मीटर कितना है, 364.25। अभी ये पुराने रिजिम का रजिस्ट्रेशन है, अभी नए रिजिम की अगर बात करूं मैं तो 500 स्क्वायर मीटर तक प्रोजेक्ट रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। बट पहले एम्बिग्विटी थी कि 500 के नीचे भी है, बट नंबर ऑफ अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब अगेन फ्लैट शॉप ऑफिस जो भी है, अगर वो 8 से ऊपर है तो तेरे वो जो कॉम्प्लेक्सिटी की रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लिया गया था, 364.25 था। अभी अपन स्ट्रिक्टली अगर मीनिंग लेना है तो 500 के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। देन टोटल नंबर ऑफ प्रपोज बिल्डिंग्स विंग्स, तो एक मतलब इसमें कितनी बिल्डिंग बनने वाली है, एक ही बनने वाली है। प्रपोज बट नॉट सैंक्शन, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अपना और एक प्रोजेक्ट हो सकता है उस बिल्डिंग पे उस लैंड पे, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। नाउ एफएसआई, एफएसआई मतलब ये टर्म आ रही है आपकी टेक्निकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी अर्बन लैंड पे से, कि उस पर्टिकुलर लैंड पे कितना एफएसआई बन सकता है। मान तो ये हो गया है 1259.04 स्क्वायर मीटर। प्लॉट एरिया कितना था, उस पर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, दीज आर डिपेंडिंग ऑन द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज नॉर्म्स। इसमें एज अ कंसल्टेंट या फिर एज अ अलॉटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही चेक करना है कि कितना सैंक्शन है और कितना फ्यूचर में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बिल्डर ने बताया है कि अभी 4 मंजिले की मजली है बिल्डिंग है, बट फ्यूचर में 7 मंजिले हो सकते हैं, बट अभी मेरी 4 मंजिले, तो आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है कि कितना फ्यूचर में बन सकता है। नहीं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब अलॉटी जाता है तो अलॉटी 4th फ्लोर का फ्लैट लेता है, बट ही सेइंग दैट इज अ टॉप फ्लोर फ्लैट, और बाद में बिल्डर करता है उसके ऊपर 3 फ्लोर बना लेता है, और अलॉटी आपको कंप्लेंट डालता है कि भाई मैंने तो 4th फ्लोर फ्लैट इसलिए लिया था, इट इज अ टॉप फ्लोर फ्लैट, टेरेस फ्लैट था इसलिए। तो अगर बिल्डर ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि प्रपोज में कितना होने वाला है, देन बिल्डर इज लायबल फॉर पेनल्टीज। देन बैंक की डिटेल यहाँ पे आती है, नंबर ऑफ गैरेज, कवर्ड पार्किंग यहाँ पे कवर होती है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि डेवलपमेंट वर्क कि कितने % हुआ है, कौन सा एप्लीकेबल है, कितना हुआ है, यहाँ पे आपको स्टेज वाइज प्रोग्रेस मिल सकता है। देन उस बिल्डिंग का डिटेल पूरा कब तक कंप्लीट होने वाला है, 31 मार्च 25। बेसमेंट है उसमें तो बेसमेंट 1 है, प्लिंथ लेवल 1 है, नंबर ऑफ सैंक्शन फ्लोर कितने हैं, 7 है, तो 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपको समझ में आ रहा है। देन उसमें कितने यूनिट्स बनने वाले हैं, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑफिस स्पेस कितने, 2 ऑफिसेस है उसमें, 3 BHK का 1 फ्लैट है, 2 BHK के 5 फ्लैट्स है, 2 BHK के अगेन 5 फ्लैट है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहा है एरिया, तो जितने अलग अलग यूनिट्स है और जितने उसके अलग अलग साइजेस है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन है। तो शॉप्स कितनी है टोटल, 5 शॉप है, 2 ऑफिस है, 10 2 BHK के फ्लैट है, 1 3 BHK का फ्लैट है। तो यहाँ से आपको इन्वेंटरी मालूम पड़ती है। देन यहाँ पे कितने % काम कंप्लीट हो रहा है, एक्सकेवेशन कितना कंप्लीट हुआ है, पोडियम का काम कितना है, स्टील फ्लोर का। दीज आर समवट टेक्निकल कि अगर आप बिल्डरशिप में बिल्डर के साइड से हो या फिर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है आपको तो ये चीज समझेंगे, बट अलॉटेड पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये समझने काम कितना हुआ है।
देन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्रोफेशनल की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आर्किटेक्ट कौन है उसका, इंजीनियर कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है। नाउ लिटिगेशन में कोई लिटिगेशन नहीं है उस पे प्रोजेक्ट पे। नाउ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट बिल्डर्स ने अभी तक सबमिट करे होंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल, स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टू टिल डेट। तो लीगल सर्च टाइटल रिपोर्ट आपको व्यू करना है तो यहाँ पे आपको दिख सकता है व्यू में, ये एडवोकेट का लीगल टाइटल सर्टिफिकेट है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नाउ रेरा इज वेरी स्पेसिफाइड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये क्लाइंट को गाइड करना चाहिए कि लीगल सर्च रिपोर्ट भी किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इवन सिंगल वर्ड चेंज इन लीगल सर्च रिपोर्ट द रेरा अथॉरिटी विल नॉट एक्सेप्ट। रेरा अथॉरिटी ने बता दिया है कि लीगल सर्च रिपोर्ट हमको इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका एडवोकेट कोई भी हो। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पार्ट पे ड्यूटी आती है कि जब भी आप कोई बिल्डर को कंसल्टेंसी कर रहे हो तो लेट देम प्रोवाइड द फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में आपको करना है। देन फाइनेंस में अगर कोई इनकम्बेंसी है, लीगल में कोई है तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। देन बिल्डिंग प्लान, अगर आपको देखना है कि उस बिल्डिंग का प्लान कैसा है क्या है तो आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो ये बिल्डिंग का प्लान आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। देन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, फॉर्म नंबर बी, ये डिक्लेरेशन है कि कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, क्या होने वाला है। देन ये फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 जो मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट, इंजीनियर का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करना है आपको एनी टाइम आप विड्रॉल कर रहे हो बैंक से तो, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। देन डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड और बुक इन्वेंटरी, उस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपके जितने अवेलेबल फ्लैट्स थे वो कितने हैं, कितने बेचे गए और कितने पेंडिंग है, ये आपको डिस्कस करना है। सरसाई डिटेल जो बैंकिंग में देखते हैं आप, सरसाई का आपको चार्ज निकालना है और चार्ज यहाँ पे मेंशन करना है। जब आप इनिशियली प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहे हो, अगर तब आपका कोई चार्ज नहीं है तो आपको नील सर्टिफिकेट जोड़ना है सरसाई का, और उसके बाद अगर चार्ज नोटिंग कर रहे हो तो आपको सरसाई का चार्ज मेंशन करना है इसमें। देन कमिंग टू द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो आपको साल के बाद में करना है, 30 सितंबर तक करना है, तो वो आपको सबमिट करना है यहाँ पे। देन अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर का भी फॉर्मेट फिक्स है गवर्नमेंट का कि उसी फॉर्मेट में अलॉटमेंट लेटर चाहिए। अगर अलॉटमेंट लेटर में आप कोई भी डेविएशन चाहते हो कि भाई ये पर्टिकुलर क्लॉज हमको नहीं चाहिए, तो दैट हैज टू बी अपलोड बाय द महारेरा अथॉरिटी। अगर आप मॉडल बायलॉज अडॉप्ट कर रहे हो, मॉडल अलॉटमेंट लेटर, मॉडल सेल्स एग्रीमेंट अडॉप्ट कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो आपको लास्ट में डिस्क्लोजर देना है कि डेविएशन रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट लेटर, डेविएशन रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉडल कॉपी ऑफ लॉ एग्रीमेंट। अगर आप सेल्स एग्रीमेंट का फॉर्मेट या फिर अलॉटमेंट लेटर जो गवर्नमेंट ने दिया है अगर वही ले रहे हो तो आपको यहाँ पे नील डिक्लेरेशन सबमिट करना है। बट अगर आपका डेविएशन नहीं है कुछ तो आपको यहाँ पे अप्रूव करके सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलॉटमेंट लेटर, तो ये यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे आपको पूरा कि किस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है। सो ओवरऑल यहाँ पे मुझे इतना ही बताना चाहता हूँ मैं आपको कि एनी प्रोजेक्ट्स आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्टर प्रोजेक्ट में जाना है आपको, प्रोजेक्ट का नाम, और एडवांस सर्च में आप जाते हो तो बाकी सब चीजें आप मिल सकते हैं एडवांस सर्च में। एडवांस सर्च में आप जाके महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सपोज जलगांव, तो ओवरऑल आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स है, कोई एजेंट की अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो सब कुछ आप यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। ओवर टू सनित सर। Yes, sir. Thank you so much, sir. I कोई had a क्वेश्चंस? question.
या मेरे को खुद को ही क्वेश्चन है सर कि आपने जो बोला कि पहले 60 लाख रुपीस कलेक्शन हुआ, 40 लाख रुपीस अपना कॉस्ट था, तो उसमें 2 लाख रुपीस जो 2 करोड़ सॉरी 2 हाँ। करोड़ जो रह हाँ। रहे थे, तो वो 2 करोड़ का फिर होता क्या है? मतलब वो सर बैंक में ही पड़े रहते? वो रेरा बैंक अकाउंट में पड़े रहेंगे आपके। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका खर्चा नहीं हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू विड्रॉ। जैसे हाँ सपोज आपका 1 महीने भर के बाद में और 5 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, ओके तो आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए सर्टिफिकेट का लेंगे कि हमारा 5 करोड़ रुपया और खर्चा हो चुका है, वो बैंक को सबमिट करेंगे, तभी 2 करोड़ रुपए आपको फ्री हो जाएंगे। हाँ, बट अगर सर मेरा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट, तो मतलब दो अभी खर्च हाँ, हाँ प्रोजेक्ट अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो यू हाँ हैव टू सबमिट फॉर्म नंबर 4 ओके एज वेल एज कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटी। वो ओके सबमिट करने के बाद आपका हाँ वो प्रोजेक्ट फ्री हो गया, तो आपका जो बैलेंस पड़ा है रेरा अकाउंट में वो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते ओके 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 सर, यही एक ये क्वेश्चन था सर। हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एनी कोई किसी को? थोड़ा Any- टेक्निकल है ये सब कुछ चीजें, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन का, कि रियल एस्टेट में क्या होता है कि काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें अगर अपने को बेसिक से अगर कुछ पता है तो वी कैन गो फॉर एडवांस वर्जन। यस सर। हेलो हाँ सर भाई। हेलो सर, अगर एज ऑन टुडे अगर अपन कोई मतलब प्रॉपर्टी लेने जाए तो अलॉटी एंड प्रोमोटर के बीच में कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलब एग्जीक्यूट होने चाहिए? सबसे पहले जब भी आप एडवांस दे रहे हो तो आप 10% का एडवांस दे सकते हो, उसके रिसिप्ट ले सकते हो आप। सेकंड वन, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है कि भाई ओके ये पर्टिकुलर फ्लैट आपको बेचा हुआ है। दैट अलॉटमेंट लेटर हैज टू बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कि भाई आपको स्टेज वाइज पेमेंट ये करना है आपको। फॉर सर, एग्जांपल आपने जैसे बताया कि अगर कोई डिविएशन है तो मतलब वो वाला मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा ना? नहीं, सुनो मेरी बात। अलॉटमेंट लेटर जो है ये आपको कंपल्सरीली सबमिट करना महावीर वेबसाइट को। अलॉटमेंट लेटर का जो फॉर्मेट है वो महारेरा ने प्रिस्क्राइब कर चुके कि इसी टाइप में आपको अलॉटमेंट लेटर देना है। ओके जनरली अगर बिल्डर को लगता है कि अलॉटमेंट लेटर में मुझे कुछ अलग क्लॉजेस डालनी है तो दैट क्लॉजेस हैज टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम द महारेरा अथॉरिटी। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिए तो वी डोंट हैव टू वरी, क्योंकि महारेरा इज वेरी माइन्यूटली सीइंग ईच एंड एवरी क्लॉज इन द अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको डिविजन लेना तो पहले एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, बट एज अ अलॉट आपको सोचना नहीं है, आपको अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। अलॉटमेंट लेटर अगर मॉडल बायलॉ से जो वेबसाइट पर अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में दिया है तो देन इट इज ओके। तो अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद 10% के ऊपर अगर आपने एडवांस दे चुके हो तो आपको ओके इंसिस्ट करना है कि एग्रीमेंट टू सेल करें। ओके सेल एग्रीमेंट टू डीड हाँ नहीं, सेल डीड बाद में होंगी, एग्रीमेंट टू सेल ओके इट इज सेम फॉर्मेट सेम होगा, सिर्फ नाम अलग है उसका। एग्रीमेंट टू सेल ओके में ये इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपको ये प्रॉपर्टी बेची जाने वाली है, उसकी बाउंड्रीज ये है, आपको यहाँ तक हम परचेस करके देने वाले हैं, ये उसका टाइमिंग डिलीवरी, ये हम एमिनिटीज देने वाले। एग्रीमेंट टू सेल। सो आप कभी अलॉटी बोल के 3 चीजें चेक करनी है आपको। एक एडवांस 10% के ऊपर नहीं देना है, सेकंड वन मॉडल अलॉटमेंट लेटर लेना है, और एग्रीमेंट टू सेल। ओके यस नेक्स्ट। एंड सर, जैसे कि सेल डीड रहेगा तो सर वो कभी एग्जीक्यूट होगा? सेल डीड आपको कंप्लीशन ओके सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही एग्जीक्यूट होंगे। ओके सर थैंक यू सर। हेलो यस। अच्छा, अपन की जो क्वार्टरली ऑडिट्स होते हैं तो उनकी प्रोसेस अपडेट की बता सकते हैं क्या? क्वार्टरली ऑडिट नहीं होते मैडम, क्वार्टरली जो है ना अपडेट्स होते हैं। हाँ। तो अभी क्वार्टरली अपडेट्स में आपको मैं स्क्रीन लेके जाता हूँ, 1 मिनट। क्वार्टरली अपडेट्स में आपको जैसे अगर आप फॉर्म्स की बात कर रहे होंगे तो फॉर्म नंबर 1, 2, 3 ये जो सर्टिफिकेट्स है, ये सर्टिफिकेट है प्रोफेशनल से, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सीए के। ये आपको हर विड्रॉल सबमिट करने हैं। मतलब ये क्वार्टर के बीच में अगर विड्रॉल है तो तब भी सबमिट करने हैं, और क्वार्टर के बाद मतलब जब आपका विड्रॉल आप बैंक से जा रहे हो तो विड्रॉल आपको सबमिट करना है। कमिंग टू द क्वार्टरली अपडेट, आपको ये जो कंपलसरी अपडेट्स है, अगर आपका बिल्डिंग मैन में अगर कोई चेंजेस अप्रूवल हुए हैं तो वो आपको सबमिट करना है। फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट सबमिट करना है। फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी ऑनलाइन देखा आपने कि कितने % प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है भाई। 7 फ्लोर थे तो उसमें अगर 5 अगर हुए तो वी कैन से 70% स्लैब हुए हैं। देन एक्सकैवेशन वर्क कितना हुआ है, तो फिजिकल प्रोजेक्ट। देन स्टेटस ऑफ बुकिंग ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट यूनिट एंड गैरेजेस, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने अपार्टमेंट्स थे, उसमें से कितने बुक हुए, कितने पेंडिंग है।
एंड द लास्ट वन, अगर आपने पूरे क्वार्टर में अगर विड्रॉ 1 भी रुपए भी नहीं किया है तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है आपको कि कोई विड्रॉवल नहीं है, और अगर विड्रॉवल अगर है तो आपने ऑलरेडी फॉर्म नंबर 1, 2, 3 सबमिट करना चाहिए। सर आप उसकी ऑनलाइन प्रोसेस बता सकते हैं क्या? मैडम ऑनलाइन आपको वहाँ पे जाके जैसे भी आपको हर क्लाइंट का एक लॉगिन मिलता है डेवलपर का, हाँ उस लॉगिन में जाके अपलोड करने होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर वेबसाइट पे गए होंगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल, आउट हो गया मैं, उस वेबसाइट पे देखेंगे आप फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 2 3-4 बार दिख रहा था। हाँ। इसका मतलब था कि वो 3-4 बार अपडेट हुआ है, मतलब हर क्वार्टर में वो अपडेट हुआ है। और प्रोसेस यस मैम। अगर हम मतलब क्वार्टरली अपडेट्स अगर करना भूल जाते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज भी एप्लीकेबल है? अभी तक मैडम रेरा अथॉरिटी ने पेनल्टीज नहीं लगाई है, बट जो हिसाब से उनका फॉलोअप चल रहा है तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड दे विल लेवी अ पेनल्टी। तो पहले इसमें प्रोसेस इस तरह से है कि अगर जिनका कंप्लायंस नहीं है उनको महारेरा अथॉरिटी ऑनलाइन वेब नोटिस देता है, ईमेल पे आपको नोटिस आती है, उस नोटिस पे आपको रिप्लाई करना है, और उसके बाद आपको अपडेट्स करने हैं, और अपडेट्स के बाद आपको नोटिस को रिप्लाई करना है। अगर आपने वो भी नहीं किया है देन महारेरा अथॉरिटी कैन टेक एक्शन। हेलो, आई एम क्लियर, एम आई क्लियर? हेलो, एम आई क्लियर? यस सर। या नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेदर रेरा कवर्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यस यस यस, रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो उसको भी सेम एप्लीकेबल है। अगर आपका प्लॉट साइज और वो अपार्टमेंट की कंडीशन अगर होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सिर्फ रिनोवेशन अगर है जिसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, रिनोवेशन रिपेयर अगर है तो दिस इज आउट ऑफ रेरा एम्बिट। सर मतलब रेनोवेशन ही होगा तो फॉर एग्जांपल पूरा बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो और थोड़ा बना सा रहे हैं, तो रीडेवलपमेंट हो जाता है सर, हाँ तो उसमें तो लगेगा ना रेरा? उसमें रेरा लगेगा सर। अच्छा, मतलब भले अगर वो ओनर सेम रहेंगे फिर भी रेरा उसमें एप्लीकेबल होगा? देखो सर, ओनर्स अगर सेम है और आप हाँ पब्लिक को इंटेंड नहीं कर रहे हो सेम इसके लिए, हाँ तो हाँ, आपको रेरा एप्लीकेबल ही नहीं। ओके। बट अगर आप उसमें बिल्डर इन्वॉल्व कर रहे हो या फिर कुछ बाद में फ्लैट सेल करने वाले एक्स्ट्रा करके बाद में, तो हाँ उसमें रेरा एप्लीकेबल होगा। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर कोई बिल्डिंग बनाई है, बराबर है, बिल्डिंग है सपोज 1000 स्क्वायर मीटर पे और 12 फ्लैट बनाने वाला हूँ, मतलब दोनों केस में रेरा एप्लीकेबल होता है। बट मैं बोल रहा हूँ कि 12 की 12 फ्लैट में खुद रखने वाला हूँ, मैं कोई मार्केटिंग नहीं करूंगा, किसी को पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, पैसे किसी से लूंगा नहीं, तो और उसके बाद कंप्लीशन ले लेता हूँ मैं, तो कंप्लीशन लेने के बाद ये प्रोजेक्ट हो जाता है आउट ऑफ रेरा, उसके बाद मैं बेच सकता हूँ। यहाँ पे रेरा का जो रजिस्ट्रेशन मतलब जो लॉजिक है वो लॉजिक यही है कि आप मीनवाइल जो भी कंप्लायंसेस है अथॉरिटी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और मैंने कोई प्रोजेक्ट अगर कंप्लीशन ले चुका हूँ मैं तो प्रोजेक्ट आउट ऑफ रेरा आता है। तो इवन दो कंडीशन एप्लीकेबल है, बट अगर मैं ओन फंड से बिल्डिंग बना के बेच रहा हूँ बाद में कंप्लीशन के बाद, तो मुझे रेरा एप्लीकेबल नहीं है। यस सर, समझ गया, थैंक यू। और कोई Thank you. क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। Thank you, sir, for such an overwhelming session. Your insightful presentations, comprehensive understanding, and practical examples has given us a deeper insight into the provisions and implications of RERA. Because many of us don't have much knowledge on RERA, so it has been a really fruitful session and enriching experience. Thank you, sir, for making our concept clear regarding who is a promoter, who is the alertee, the way you showed how can we see project reports on RERA website, and that the legal search reports is always been prescribed in a specific format, even though the person changes. And thank you, sir, for making us understanding about the RERA account with examples, and for making the concepts clear that when updates should be made, that is quarterly or annual. Now I request Harshavardhan Patil, Treasurer of Ahmednagar branch of Picasa, to give a formal vote of thanks. Yeah, just a second. Before that, sir, Parikshit sir, can we have that PPT if you are comfortable?
Yeah, no problem. I will send you the Nagar branch. No WhatsApp. problem. Thank you so much. Thank you, sir. Good morning, everyone. Thank you all for joining us today at this enlightening seminar on understanding of RERA. We are truly grateful for your presence and participation. First and foremost, a special thanks to our esteemed speaker, C.A. Parikshit Bhadade sir, for sharing his profound knowledge and expertise. We would also like to express our appreciation to C.A. Sanit Mutha sir. Your support has been invaluable. A big shout out to all the managing committee members of Jalgaon, Navi Mumbai, Pune, and Nanded branch of Vikasa. Without you, the seminar would not have been possible. Last but not the least, thank you to all the participants for actively engaging in discussion and making this seminar a success. Your presence here today signifies your commitment to personal and professional growth. Now, I would like to conclude this seminar by reciting a hymn. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschiduk Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. May everybody be happy. May everybody be free from disease. May everybody have good luck. May none fall on evil days. Thank you, everyone. Have a wonderful day ahead. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you.